हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, तबीश, हाउ आर यू? यू रेज योर हैंड, तबीश। गुड मॉर्निंग अनिकेत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग विजेंद्र। So let's start. Okay, Alpesh, that's fine, no problem. I just read your message. Okay, so let us start this session. Well, in this session, I have just shared a screen. You have measure your units, and these units related to MSCI, that is MSCI 0, 21, 22, 23. So today we are supposed to do some 23, right? And in 23, if you will see that the major topics that is related to your social engineering. So what is social engineering? Then what is email crime and investigation? What is your reverse engineering and cracking methodologies? So we are supposed to talk on these grounds, right? And I'll share some process of email investigations and all. I think that is also one of the question generally comes into your practicals also, that how you are supposed to identify the email investigations, right? And whenever we used to call the concept of social engineering, so social engineering is like where you are supposed to collect the information non-technically, generally non-technically, but today even these days we have a very specific concept for this, and we have a very much technical with social engineering, and that concept called as a that's a new concept but very very important concept, especially for law enforcement agencies. So that concept is called as OSINT, that is open source intelligence. So whatever the content available, either open source, openly on your some social media, or available somewhere on search engines like Google, or some data collected by some chat GPT or somewhere. So you can go in the advanced part of it, but this social engineering is a part of like where we are talking about like shoulder surfing attack. So what is shoulder surfing? Let's say you are going to pass your password, and you are using like keys, you are using a simple step by step, you are pressing a keys, and you are not a frequent typing person. So in that case, generally you'll type, and anyone who is there next to you can easily able to identify what is your password. Even that happens a lot, especially at the time of if you're accessing ATM, and you are supposed to type your pin number. So you'll read where is the value, and especially then you go and press the keys. So that pattern, that fingers, that positioning, if any person is standing next to you, can easily identify what is your pin number, right? And that is why people used to go with like card swapping. So they swap your card and they already know your pin number, because they did a social engineering, that is shoulder surfing, and they can hack your passwords, right? So that is one of the technique how the people used to go and get into this social engineering and extract some information. A lot of things, a lot of other ways to extract the information from this social engineering model, right? So whenever
We used to call into the concepts of social part, like that means could be a social engineering like in shoulder surfing, or information which is openly or publicly available, common patterns. So generally even the investigation, or even the same concept used by the criminals, because if they really want to target someone, so that is a part of there are three major areas. I think in the initial sessions I have explained that part also, if you remember. The Whenever if you talk about the life cycle of hacking, I'm sorry, I'm not feeling well, but I have a session for along with you, so I'll try to go with you the best, right? So the concept is like, let's say we have to target someone. Now if you target someone, so first we need the authenticity of that person, that target. So once you'll reach to the target, once you're really able to approach to the target, for approaching, the best practices, we have to collect a lot of information about that person. So how can you collect that information? To collect such information, the best practice is that we have to go through with a concept called information gathering. So information gathering is a kind of a category which is to be divided into three major categories, subcategories of that information gathering, where that is, first is your social engineering, second is your footprinting, and third is your scanning. So if you do three major things in terms of digital world, this cyber world, then actually you will be more near to your target. Okay, so what is the best practice? How we are supposed to do all these things? So first is social engineering. That means you need to identify the target, their address, their location, their basic information, right? And even let's say you got some number of some person, so you can identify their details on that. So it becomes a little advanced, means non-technical now becomes a bit technical, with a common information or a public information which is available. That is nothing but the next generational model called open source intelligence, right? So we need to apply some information about a person or a number, so any attribute of any human, right, or any target. Let's say you got some IP address, or you want to identify somebody's location, or you want to figure out like how we can approach to someone. So there are various ways, various different layers to approach and to find out the details, right? And if you really want to get into that part, what is the best practice? The best practice is, let's say we need to capture the information of a particular person. We need to figure out like from where that person is trying to work. So we want their footprints. So for footprints means, now you are talking what little technical. So from social engineering we'll switch to footprints, and will identify their IP address, their domain, their geographical location, and their hidden information attributes about any IP address, their ISPs which they are using, from where they are operating. So we'll try to figure out those values, their operating system, right, and their applications, their user agent information. So there are various different ways how you are supposed to identify that data, and the moment you will identify that data, you can able to process it, right? So that is the next level called your footprinting. Then the third part, if you already aware that where is your IP or domain, or you got some information, then we'll try to scan the ports. That means what all the services are running over there. So how to identify the port? So this is a kind of a practical which generally being asked in your any one of the subject. And please try and understand, you need to learn the topic, because any topic can be covered in any of the exam, right? Just take it like that. And if somehow it's possible for you to find some last year question papers on Google, or in on IGNO's Gyankosh website, so I think that would be really helpful for you, so that you'll able to find out, okay, that is the criteria where they are asking for some common information.
and all practical oriented. So you have to do practicals on it. Okay. So there are a lot of things like where you can capture some information, do the footprinting or scanning. So we'll ask you to, okay, go and scan how many ports are open on any target website or any particular IP address. Let's say we'll give you igno.ac.in. Suppose this is the website. Now you all have to go and do the port scanning or extract the information as much as you can. When that domain got registered, where it is running, what is the location, what is their IP, how can we analyze all these things? To analyze all these things, we need to do the concept of information gathering. And in that case, three stages, as I said. So all three stages, like first is social engineering, second is your footprinting, and third is your scanning. So you all have to go through with these three different stages and you have to complete your task, right? So if you want, let's say we'll try. Okay, I'll just share my screen again and just take a look. How can we able to capture some information about someone? So let's say we'll target ignu.ac.in, right? So suppose I want to access a website. Now see, that is again the problem. If you might have seen, yeah, hope my screen is visible, right? I just tried ignu.ac.in. Is it the same output which you are getting at your end? You can also try to access the website. Let's do some practicals on it. Is it the same? Means I just tried ignu.ac.in and it is saying that your web. Sorry to interrupt, sir. The Yes. screen is not visible. Can you share it again? No, but I think it must be. What about others? Can't you see Sir, it is others? visible. Sir, it is visible to me. हाँ, if it is Okay, visible तो I think आमिर आप एक बार दोबारा से yeah, मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ, सर. हाँ एक बार फटाफट ज्वाइन कर लो. So the concern is, can you check at your end that do you have the similar result as I got right away? I just tried to access ignu.ac.in. So can you give me the reason why it is happening? Anyone? Although the error is there, error in certificate authority is invalid. Have you seen this? Can you check this site ignu.ac.in? And do you also get the same result? Don't worry, I'll explain what is this all about. But did you found the same results? As I tried to access ignu.ac.in. Is it the same result with you Yes, sir. as well? Yes, sir. है ना? Same है ना? Results? Just try and access your, open a browser and check ignu.ac.in. Everybody found the same results? Now, what does it mean? Generally, you will get this page once your HTTPS SSL certificate has been expired. Generally, it happens once your SSL certificate has been expired. So, can you tell me or find the details that when your what was the last date of this SSL, and when what was the last date of working of this SSL, and when it was expired? Can you identify this? So a part of like some information gathering, it is nothing but what all you need to do. Just go and click on this particular link, find your certificate details. If you go and find the certificate details, see the concern, although it is valid till 30th August 2031. Okay, but if what I found, they registered with the company name called localhost.local domain, organization name my company. So I am worried whether it is really
the genuine website or what? Although we are just running igno.ac.in, right? And they have some validity issues, so you can try and check what is the concern, because the company name cannot be like this. So it could be happen that their SSL certificate, their primary key, they have a private and public key. So due to any reason they overlapped the certificate. मतलब आई फील दैट वहाँ पे जो आईटी एक्सपर्ट जो भी बैठे हैं, जिन जो वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं, व्हाट द मिस्टेक दे कमिटेड, ये उनका सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट है. This is just a self signed certificate. This is not at all being used by the service provider. There are certain CA, certifying authorities are there who provide you the certificates. Let's say I'll show you another example. Let's say if I'll access some SBI website. Now if you're working with a bank, and now just identify what you will find. Now you will find online sbi.sbi.bank.in. Do you really believe this is SBI website? Because the final TLD, you have to check the TLD and the domain name. The actual domain name is bank.in. So is it bank.in is a part of this online sbi.sbi.bank.in? In the same way, you got a sbi.co.in. In the same way, so is it a phished website or not? So you need to find out. Sometimes a practical is there that you have to identify whether the website has been phished or not. corp.online.sbi.sbi. Did ever you identify .sbi as a TLD, top level domain? Generally .com होता है, .in, .co.in, .org, .net आप देखते हो. कभी आपने .sbi देखा है? Anybody? So the concern is we have to identify. Now suppose if this is a website, whether it is a trusted website or a fake website, in the same pattern we have to identify the others as well. So what is the best practice? The best practice to identify any phishing website, you just go and open that site. Let's say I'll go and open this website. On the top it is .sbi, and if it is running fine, because you will find there is a HTTPS protocol which is there. Now HTTPS, what is the full form of HTTPS? Can anyone answer this? It's an abbreviated word. Sir, hypertext जी? transfer protocol secure. Anyone else want to say something? तबीश ने आंसर दिया है, ठीक है. Anyone else want to answer this? ओके. तबीश, अगर आप ये आंसर थ्योरी में लिख के आओगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे. समझ गए? अब समझो, थोड़ा सा टेक्निकल समझना जरूरी है. एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, आपने वो वाला आंसर दिया जो लोग सब देते हैं. मतलब आज भी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में यही चीज पढ़ाई जा रही है और हर जगह यही लिखा हुआ है. लेकिन ये ना पार्शियली करेक्ट है. इट इज नॉट फुली करेक्ट, इट इज पार्शियली करेक्ट. बिकॉज HTTP तो आप टेक्निकल आंसर दे रहे हो. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, योर कंसेप्ट इज राइट, बिकॉज दैट इज HTTP. बट व्हाट अबाउट एस में आप बोल रहे हो सिक्योर. अरे क्या सिक्योर? कौन सिक्योर? कैसे सिक्योर? तो सिक्योर वर्ड इज इनकरेक्ट, और पार्शियली आई वुड से द करेक्ट पार्ट. Why? Because the technical answer for S stands for secure socket layer. What is it? Secure socket layer. और आप सिर्फ सिक्योर बोल रहे हो, और ये आपका नहीं है, सभी का आंसर भी यही है. सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं, सभी लोग यही करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली टेक्निकल डेफिनेशन कोई नहीं बताता है. That is a bad practice. We need to understand, once we are into the cyber security, we need to figure out what are the real-time problems. So the real answer is hypertext transfer protocol with SSL layer, secure socket layer. That is, S stands for SSL layer. क्योंकि आपका डेटा जो HTTP प्रोटोकॉल का डेटा है, वो एक सिक्योर टनल में डेटा ट्रांसमिट करता है, और डेटा ट्रांसमिट करने का मतलब यह है कि कोई भी मैन इन द मिडल अटैक नहीं कर सकता. That is a secure tunnel being complied with this SSL.
लेकिन अब बड़े ध्यान से समझो इसको, मैं आपको थोड़ा टेक्निकली और नेटवर्क पर्सपेक्टिव से बताता हूँ. यू नो देयर आर 7 लेयर्स ऑफ OSI, राइट? वी हैव 7 लेयर्स ऑफ OSI. सो OSI में अगर आपका लेयर 1 फिजिकल लेयर, आपको याद है ना फर्स्ट लेयर कौन सा होता है? फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आपका आता है सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, एंड सेवंथ लेयर इज योर एप्लीकेशन लेयर. हम जनरली इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं. So in descending order, seventh layer is the on the top, which is application layer. Why? Because user can able to interact only with the application. ठीक है, तो इसलिए जनरली हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं. अब समझो ध्यान से, HTTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, these protocols are always the application level protocol, यानी सेवंथ लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं ये. ठीक है, लेकिन सेवंथ लेयर के ऊपर अगर प्रोटोकॉल्स हैं और जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, ब्राउजर पे जो डेटा लेके आ रहे हैं वो HTTP लाता है. लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो डेटा एप्लीकेशन लेवल है तो यानी वो डिक्रिप्टेड होगा, और अगर वो डिक्रिप्टेड डेटा होगा तो कोई भी मैन इन द मिडल अटैक करके हैक कर लेगा. आप अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट है, जैसे अभी इग्नो की ही हम वेबसाइट की जो बात कर रहे हैं, अगर आप ये देखोगे इग्नो की वेबसाइट पे अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम ये है कि किसी ने वहां पे क्या किया, igno.ac.in वेबसाइट तो है और HTTPS चलाना होता है, लेकिन ये जो इशूअर है, ये इशूअर का कोई भी रजिस्टर्ड ब्राउजर के अंदर कोई भी पब्लिक की नहीं अवेलेबल है. ये जो मर्जी डेट दे दो, एक 10 साल की डेट दी हुई है इन्होंने, 10 साल के लिए ये वैलिड है. 10 साल के लिए कोई सर्टिफिकेट वैलिड नहीं मिलेगा. ये प्राइवेटली साइंड वेरिएबल है, यानी किसी ने खुद अपना SSL सर्टिफिकेट बनाया. ठीक है, जो भी वहाँ IT हेड है उसने अपना SSL सर्टिफिकेट बनाया और बना के उसमें डाल दिया और कह दिया कि जी HTTPS इनेबल हो गया. ऐसे इनेबल नहीं होता. दिस इज इनकरेक्ट. ये बेसिकली मुझे ये लग रहा है किसी ने मिस्टेक कर दिया, वहां पे वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई अटैक हुआ होगा या कुछ होगा, उन्होंने सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट डाल दिया. सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट कभी नहीं डालते हैं. दिस इज सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट. ये बनाते कैसे हैं? लाइनक्स में एक कमांड है ओपन SSL. आप ओपन SSL से खुद का सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट बना सकते हो. प्राइवेट पब्लिक की बन जाएंगी और वो पब्लिक कीज और प्राइवेट कीज आप अपने सर्वर पे डालोगे और होस्ट कर देते हो वेबसाइट. ये हम लोग ना लोकल होस्ट अपने घर के अपने कंप्यूटर पे एक्सरसाइज करने के लिए करते हैं. और ये देखो, ये वही आ रहा है, ये वही सर्टिफिकेट्स हैं. समझ गए? तो बड़ा क्लियर है. ये सोशल इंजीनियरिंग और थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होगा तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कितनी बड़ी मिस्टेक कर रखी है इन्होंने. और देखो, इतनी बड़ी वेबसाइट और गवर्नमेंट की वेबसाइट और क्या ये काम कर रहे हैं बताओ. ऐसे थोड़ी सर्वर चलेगा. सो दिस इज इटसेल्फ इज अ वेरी आई वुड से द मैल प्रैक्टिसेस. वहाँ का मतलब जो टेक्निकल आदमी है बड़ा क्लियर है. वहाँ जो भी टेक्निकल आदमी है वो नॉन सिक्योरिटी कंप्लाइंट है. वो सिक्योरिटी उसे नहीं पता. वो एक वेबसाइट होस्टिंग वाला हो सकता है और वो भी कोई डेवलपर जैसे होते हैं ना, हायर कर लेते हैं, है ना, कुछ ऐसा होगा जरूर जिसने इतनी बड़ी मिस्टेक्स कर रखी है. इवन वी आर सपोज टू गिव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू इग्नो. अब यही देखो, यही काम जब हम HTTPS इस वेबसाइट पे कर रहे हैं जहां मैंने आपको दिखाया कि ये कौन सा आ रहा है .sbi या TLD. इसका ये हाईलाइट, मेरा माउस कर्सर फॉलो करना. तो ये क्या है? .sbi है. जब ये यहाँ पे .sbi आ रहा है, क्या SBI नाम का कोई डोमेन होता है? कोई टॉप लेवल डोमेन होता है? TLD कहते हैं इसको. ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एज TLD. तो SSL क्या है एग्जैक्टली? SSL आपके एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स को एक टनल प्रोवाइड करता है जिसमें वो टनल के थ्रू डेटा इस लेवल तक इंक्रिप्ट होके जाता है कि कोई भी उसको हैक ना कर सके. दैट इज द पर्पस ऑफ HTTPS. S स्टैंड फॉर SSL लेयर. ऑलराइट. लेकिन इस पे भी अटैक्स पॉसिबल हुए. मतलब पहले लेवल पे सिक्योरिटी है SSL. अब किस पे हुआ? SSL वर्जन 1.0, 1.1, 1.2. जब तक SSL के वर्जन्स थे, आप इसको भी ट्राई करे हो, है ना, जब तक तो वो SSL के वर्जन थे तब तक इस पे ना सेशन हाईजैकिंग पॉसिबल था. तो आप शायद हैरान हो गए, हम कोई 8-10 साल पहले तो हम सीधा फेसबुक ऐसे ही हैक कर लेते थे बिना किसी के यूजर ने पासवर्ड के. हम सीधा उनके अकाउंट में घुस जाते थे. कैसे घुसते थे? हम अपने मशीन पे एक नेटवर्क स्निफर ऑन करते थे और लैन में सब दोस्तों को बोलते चलो भाई चलो सब अपना फेसबुक खोलो. वो जब फेसबुक ओपन करते थे, फेसबुक के उनकी मशीन को टच भी नहीं करा,
नेटवर्क में अपनी मशीन पे हम लोग एक स्निफर जैसे वायर शार्क या एथरकैप, है ना, एथरील नाम के कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो हम लोग उन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके, वायर शार्क जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके सबको कहते थे लॉग इन करो। जब वो लॉग इन करते थे, हम HTTP प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करते थे और उसमें कुकीज ढूंढते थे, और वो कुकीज हमें मिल जाती थी, और कुकीज में क्या होता था, उनका सेशन आईडी। वो सेशन आईडी हम कैप्चर करके अपने ब्राउजर की कुकीज में डिप्लॉय कर देते थे, इंजेक्ट कर देते थे, जिसकी वजह से बिना यूजर नेम पासवर्ड के उनका अकाउंट हम अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर्स पे खोल के दिखा देते थे। समझ गए? सो दैट वाज अटैक। इवन HTTPS के बाद भी अटैक पॉसिबल था, बट दैट वाज ओनली पॉसिबल टिल वर्जन 1.0, 1.1, 1.2 तक। इसके बाद सीधा जंप हुआ, सीधा नया वर्जन आया 3.0, जिसे 3 वर्जन कहते हैं, या 3.0 मतलब थर्ड वर्जन है। थर्ड वर्जन के अंदर एक और नया कॉन्सेप्ट आया HTTPS के साथ, और ये जो नया कॉन्सेप्ट आया वो था TLS लेवल सिक्योरिटी, यानी ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी। यानी आप समझो, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल था HTTP, वहां से वो आया सेशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सेशन हाईजैकिंग होता था उससे, तो वो आया 6th लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे, उसको इंप्लीमेंट किया, इंक्रिप्ट किया डेटा को, और फाइनली डेटा जो जाता था वो किसी सेशन के थ्रू चैनलाइज होके जाता था। सेशन हाईजैकिंग पॉसिबल हो गई, यानी 5th लेयर हैकिंग शुरू हो गई। तो हम 7th लेयर का डेटा हैक ना करके हम 5th लेयर से डेटा हैक कर लेते थे, दैट इज सेशन हाईजैकिंग। ठीक है, तो हमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए किसी का, सिर्फ उनका सेशन आईडी चाहिए। ठीक है, तो वो सेशन आईडी के बेसिस पे हैक हो जाता था। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, क्योंकि सेशन हाईजैक हो रहा था, इसको भी मिटिगेट करने के लिए हमारा SSL का नया वर्जन आया 3.0, और 3.0 के साथ एक और कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड TLS। तो जो आज का आंसर होना चाहिए ना, जैसे तबीश मैंने आपसे पूछा और सबसे सबसे भी पूछा, आज का आपका आंसर पता है क्या होना चाहिए? सही आंसर क्या होना चाहिए? अगर इतना आप आंसर दोगे तो मतलब सामने वाला समझ जाएगा, आप इंटरव्यूज के लिए भी जाओगे तो सामने वाला समझ जाएगा, मतलब आप अच्छे से जानते हो, ये टेक्नोलॉजी आप अच्छे से जानते हो, यू आर अ वेरी गुड पर्सन इन टेक्निकल टर्म्स। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद S stands for SSL, that is secure socket layer, with TLS transport layer security। तो आपका HTTPS का आंसर आज की डेट में ये होना चाहिए, और TLS का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी एक एंड से डेटा निकलेगा, दूसरे एंड तक कोई बीच में मैन इन द मिडल अटैक नहीं कर पाएगा, सेशन हाईजैक भी नहीं करेगा। क्योंकि कोई सेशन हाईजैक आज भी करता है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट लेयर तो सेम नहीं है, उसकी मशीन तो सेम नहीं है जहां पे डेटा जा रहा था, तो वो तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो डिवाइस बदल गया। पहले सिर्फ सेशन, सॉफ्ट सेशंस को पकड़ा जाता था, अभी तो ट्रांसपोर्ट लेयर को भी पकड़ते हैं, सिक्योरिटी लेवल तक ले आए। इसलिए जितने भी मेजर प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके फिशिंग अटैक्स को रोकने के लिए HTTPS का यूज किया जाता है। तो अपने आप में ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। समझ में आया? सो बेसिकली, हालांकि और प्रोटोकॉल्स और एप्लीकेशन एल्गोरिथम्स लगते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए, जैसे व्हाट्सएप वगैरह ने लगाए हुए हैं, है ना, बट एटलीस्ट एक वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के लिए हमने तो काम शुरू किया था कि भाई हमें पता चले या फुटप्रिंट्स निकालें, लेकिन देखते ही हमें सबसे पहले प्रॉब्लम ही सामने नजर आ गई, लो इग्नू की वेबसाइट में गड़बड़ नजर आई। तो इसीलिए मैंने आपको ये पूरी डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझो। जब भी आपसे HTTPS के बारे में पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद SSL विद TLS सिक्योरिटी। क्योंकि TLS जो है वो केवल वर्जन 3.0 में थी, पुराने वर्जन्स में TLS नहीं था, पुराने वर्जन्स में सिर्फ SSL था। समझ में आ गया सबको? इज दैट क्लियर? तो अब देखते हैं फिर इनका क्या हाल है। अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस, जो अभी जितने भी बैंक्स हैं, यदि आपको कोई, आपका कोई ऐसा बैंक नजर आता है जो कि SSL सर्टिफिकेट, अब SSL सर्टिफिकेट कौन सा है वो देखें, तो इसमें भी वही काम करते हैं, क्लिक करा, ये कह रहा है कि इसका कनेक्शन सिक्योर है, लेट्स से विल ओपन इट एंड लेट्स से विल चेक द सर्टिफिकेट इज वैलिड और इनवैलिड। तो यहाँ पे देखिए बड़ा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, नेम ऑफ द डोमेन, सब डोमेन, ठीक है, corp.online.sbi.com, ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ये ऑथेंटिक साइट है, ऑफिशियल साइट है। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जहां पर यहाँ पे
नॉट अ पार्ट ऑफ सर्टिफिकेट ये लिखा होगा। वो मोस्टली फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल वेरिफिकेशन नहीं होती। एक्चुअली क्या है, फ्री हो या पेड हो, अब एसएसएल भी बड़े सारे हैं, एसएसएल वर्जन्स बहुत सारे हैं। एक आता है, जैसे एक आती है वेबसाइट है लेट्स एनक्रिप्ट। लेट्स एनक्रिप्ट वाले क्या देते हैं, फ्री में देते हैं। वो 3 महीने की वैलिडिटी होगी, हर 3 महीने बाद आप उसे ऑटो रिन्यू करवा सकते हो। तो वो होता है एक प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस होता है आपका यहाँ पे ये जो आपके जो स्पेशली आरबीआई या बैंक्स फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। एक तो हो गया फ्री वाला, एक हो गया आप अपनी कोई भी वेबसाइट, अपनी कंपनी की वेबसाइट में आप एसएसएल सर्टिफिकेट खरीदते हो, तो वो जनरली कॉस्ट करता है कोई, मुझे लगता है 1200-1500 रुपए प्लस टैक्स, ठीक है, फॉर 1 ईयर। तो प्रोवाइडर कौन होता है, अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008, लीगल भी बता रहा हूं, है ना, दैट इज मैंडेटरी टू गेट योर डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सिग्नेचर्स फ्रॉम द ऑथराइज्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। सीए, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। तो ग्लोबल सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं, जैसे उनमें से एक है डिजिसर्ट। एसबीआई को ऑर्गेनाइजेशनल वेरिफिकेशन करा है। अगर आप रेगुलर डिजिसर्ट से सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो शायद 1000, 1200, 1500 रुपए में आता। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल वेरिफिकेशन करवाओगे तो ये डोमेन के पेपर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इस सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को भेजता है। पेपर वेरिफिकेशन होते हैं, डोमेन नेम वेरिफिकेशन होता है, उनका इनवॉइस वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को लगते हैं 18,000 रुपए प्लस टैक्स फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो यहां बैंक्स को एसएसएल सर्टिफिकेट लेने के लिए दे हैव टू पे 18,000 प्लस टैक्स। फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दे डोंट बाय विद द ऑर्गेनाइजेशन वेरिफिकेशन, so they buy a simple certificate which costs them almost 1,500 plus tax or somewhere, right, average, on an average, right. And there are many other organizations, small scale organizations, where they are not willing to pay any amount but they want security. So that is why there is an organization called Let's Encrypt, and they provide you the SSL certificate 3.0, proper 3.0, but their validity is only for 3 months, and you have to extend that validity, which is also free of cost. But every after 3 months, 4 months, you have to work on it. This is the way how it works. So if it is like for 1 year, can you see the banks are also working somewhere for 1 year approximately? Got it? So they got a certificate which is the valid for, let's say, for 1 year. How come your certificate is valid for 10 years? So that means this, and who is the issuer? Your local host is the issuer. That means very clear that somebody created a self-signed certificate to access this HTTPS content, and that is why IGNU का ये प्रॉब्लम आ रहा है। लॉजिक क्लियर हुआ? मतलब जो हेड है यहाँ पे, आईटी हेड है, भैया उसे समझाना पड़ेगा ये क्या गलती कर रहे हो भाई। जाओ ऑफिशियली सर्टिफिकेट खरीदो सीए से, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से, पैसा दो, इनवॉइस लो, सरकारी वेबसाइट्स हैं, ऐसे थोड़ी अच्छा लग रहा है। और पब्लिक इंफॉर्मेशन है, क्लियर नजर आ रहा है क्या गलती की हुई है। पता नहीं इतने टाइम से इन्होंने इसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया। या तो सर्वर में कुछ दिक्कत है या कंटेंट में कुछ दिक्कत है, क्या है। क्योंकि ऐसे में अगर आप इस वेबसाइट पे लॉग इन करोगे 100% आपका डेटा हैक होगा। सो दैट इज वनरेबल फॉर हैकिंग एंड इट इज अनट्रस्टेड वेबसाइट। हालांकि इसमें एक एडवांस देखा आपने, एडवांस सर्च का टेक्निक एंड प्रोसीड टू इग्नो वेबसाइट। दैट मीन्स इट इज अनसेव्ड कंटेंट विच यू कैन नाउ एक्सेस। एटलीस्ट आप कंटेंट देख सकते हो, तो यानी ये काम करेगी लाइक HTTP। Now you got a website like it is a HTTP website. So you got it, ये देखो जी, ऐसे जब प्रधानमंत्री जी को सामने डाल दिया और HTTPS गड़बड़ कर दिया। So this is incorrect way to present their data, right? So they have to buy से तो Let's Encrypt का ले लो ना, 3 महीने के लिए वो फ्री है, वो लेके डाल के और प्रोसेस कर दे। So that is a mistake which they have committed, and they have the website and the content is fine. आपको लगेगा सर साइट तो ठीक है, बट आपको एक बार वो प्रोसेस करना पड़ेगा। ये प्रोसेस क्यों करना पड़ता है?
क्योंकि सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट है, उस समय आपका SSL सर्टिफिकेट की पब्लिक की आपके ब्राउजर में होती नहीं है, तो आपका ब्राउजर एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि मुझे पब्लिक की फॉरवर्ड करो, और अगर वो ट्रस्टेड सर्टिफाइंग अथॉरिटी से होता है तो वो पब्लिक की आपके ब्राउजर्स में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आती, और वो प्राइवेट पब्लिक की मैच हो जाती है, सीधा साइट खुल जाती है और सिक्योर टनल से खुलती है। लेकिन इनके केस में क्या प्रॉब्लम थी, इनका जो सर्टिफिकेट है वो सेल्फ साइंड है। सेल्फ साइंड होने के बाद देखो अभी ये सिक्योर दिखा रहा है, अभी आपको दिखेगा अरे ये तो सिक्योर है सर, ये देखो कनेक्शन है सिक्योर, अभी तो ये कनेक्शन सिक्योर दिखा रहा है। लेकिन कनेक्शन जो सिक्योर दिखा रहा है, तो इनका अब देखो ग्लोबल साइंड आ गया, आप देख रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब कहां से आ गया, ग्लोबल साइंड वालों से इन्होंने सर्टिफिकेट लिया, और इनकी वैलिडिटी देखो, तो इनकी 2 साल की वैलिडिटी है इनके पास, है ना। 2026 तक तो हमारे को जो डेटा आ रहा था वो किसका आ रहा था, 2031 तक का आ रहा था। तो समझ में आया कि कंटेंट कहां से शुरू हुआ, डोमेन का सर्वर का अलग है, इनके यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस का इन्होंने इशू किया हुआ है, और जो भी आईटी वाला है वो साइबर सिक्योरिटी कंप्लाइंट तो नहीं है, जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल रहा है। इतनी बात बड़ी क्लियर हो गई। इन्होंने ग्लोबल साइंड वालों से सर्टिफिकेट लिया कि नहीं लिया, और यहां तक कि देखो ऑर्गेनाइजेशनल वेरिफिकेशन लिया हुआ है। और एस्ट्रिक को हम कहते हैं वाइल्ड कैरेक्टर, वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं। वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट का मतलब होता है *igno.ac.in, कुछ भी होगा उस पे ये सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, यानी इसके नीचे कोई भी सब डोमेन्स होंगे उन सब पे यही सेम सर्टिफिकेट लगेगा, उसके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट नहीं खोलना होता, लेना होता। दैट इज वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट्स। इन्होंने वाइल्ड OVSSL लिया हुआ है, देखो ये प्रोवाइडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन वेरिफिकेशन करवाया हुआ है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में गलती कर रखी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिक्कत कहां आती है, कैसे आती है? फर्स्ट टाइम आपने साइट खोली तो उसका आपको पता चल गया, देखो क्या मिस्टेक है, तो इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज, ठीक है। और यहां तक पता चल रहा है कि उनका ये जो वेबसाइट है, जो ये वेब सर्वर है, वेब सर्वर का नाम क्या है, लोकल होस्ट है। तो देखो ओपन सोर्स में आपको फुटप्रिंट्स मिल गए ना, कंप्यूटर का नाम उन्होंने ओपन सोर्स रखा है, और उन्होंने डोमेन के लिए भी मैपिंग नहीं की हुई है, यानी FQDN सर्विसेज होती है वो मिसिंग है इनकी। FQDN सर्विस होती है जिससे डोमेन नेम सर्वर मैपिंग होता है ना, और वो मिसिंग है उनका पीछे। तो ये वनरेबिलिटी है एक छोटी सी, यहीं से देख के पता चल जाता है साइट्स में क्या मिस्टेक्स हैं। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हुआ जी? एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, और इसका वर्जन चेक करें, ये देखो इसका वर्जन कितना है, ये देखो वर्जन 3 है कि नहीं SBI का। तो वर्जन 3 का मतलब बड़ा क्लियर है कि आपका SSL विद TLS है, इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा जरूर TLS। ये देखो ये एल्गोरिथम्स कौन सी लगी हैं, हैश वैल्यू मैचिंग हो रही है, सर्टिफिकेट सिग्नेचर एल्गोरिथम विद RSA है ना, RSA है, साथ में ये डिजिसर्ट वालों की डिटेल्स हैं, एंड कहीं मैंने देखा है इसमें कहीं ना कहीं जरूर होगा, लेट मी फाइंड आउट फॉर यू। ये देखिए ये पब्लिक की एल्गोरिथम कौन सी RSA के साथ यूज हो रही है, RSA की ये रही पब्लिक की, ये रही पूरे आपके ब्राउजर पे, आपके ब्राउजर में जो एम्बेडेड है फॉर ये डिजिसर्ट। तो डिजिसर्ट की एक बेसिक पब्लिक की है जो इनके डोमेन के साथ मैप हुई हुई है ना, और वो हमारे ब्राउजर्स में होती है, और ब्राउजर में होने की वजह से सीधा वेबसाइट खुल जाती है, इंक्रिप्टेड हो जाता है पूरा, की मैच हो जाता है, प्राइवेट पब्लिक की मैचिंग हो जाती है। समझ में आया? ये इंटरनली काम कैसे करते हैं, कौन सा डोमेन है, किसके लिए है, क्या पॉलिसीज हैं, आप यहाँ पे सारा इसको स्टडी कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है जी। और ये देखो जी, ये आया है एक्सटेंडेड की यूजेज, ध्यान से देखो कहाँ पे मिला, एक्सटेंशंस में है एक्सटेंडेड की यूजेज, और यहाँ पे बड़ा क्लियर कट लिखा है ना, TLS www सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज हुआ है, और उसका वर्जन क्या है, एंड इट इज नॉट क्रिटिकल, सिविरिटी लेवल इज नॉट क्रिटिकल। और बैकएंड में क्या यूज हो रहा है, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, मतलब एंड टू एंड डिवाइस टू डिवाइस मैपिंग होगी, और डेटा सिक्योर टनल से जाएगा, अगर कोई सेशन हाईजैकिंग करने की कोशिश करेगा वो भी नहीं कर पाएगा,
मतलब SBI की वेबसाइट सिक्योर है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं अपने ब्राउजर पे, बस आपको अपने ब्राउजर की सिक्योरिटी पे ध्यान देना है, ना कि SBI के नेटवर्क की सिक्योरिटी पे, वो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। ये टेस्टिंग होती है, ऐसे ही अपने बैंक्स की आप अपने अपने एंड पे टेस्टिंग करो जहां जहां आपका बैंक अकाउंट है। तो ये एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि कैसे हम किसी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो लकीली आज हमें इग्नू की वेबसाइट ऐसे मिल गई और हमें पता चल गया, और वैसे खोले तो बिल्कुल ठीक है। सो व्हाट्स अ रीजन, व्हाट्स अ मेन कॉज? अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉज, व्हाई इट इज हैपनिंग? एनी डाउट? तबीश क्लियर हो गया? HTTPS तो और Yes. बाकी भी। Yes, हाँ, sir. हाँ, अब अगर आप लोग प्लीज याद रखना, कभी भी कोई आपसे पूछता है व्हाट इज HTTPS, वो कोई टेस्ट नहीं कर रहा है आपका, लेकिन आपको आपका ये टेस्ट कर रहा है। अब आप इंटरव्यूज में जाते हो अगर कहीं, और वहां आपसे कोई पूछे HTTPS, तो सिर्फ ये मत बोलना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, क्योंकि सामने वाला अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल है, बस वो उसी में समझ जाएगा यार आप पार्शियल नॉलेज लेके आ रहे हो। आपको पूरा इलेबोरेट करना है, जैसे मैंने भी आपको सारी चीजें समझाई, अगर आप ये सारी चीजें उनको एक्सप्लेन कर देते हो इन डिटेल, तो बेटा अपने आप सबका मतलब सिलेक्शंस पॉसिबल है। अंडरस्टूड? ठीक है। और ये जरूरी भी है, ये हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, और ये पब्लिकली तो लिखा है, हम क्यों जर्नल वर्ड्स यूज कर रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि मतलब हर जगह ना हम एक भेड़चाल में चलते हैं, मैंने ये देखा है। हम उसको डेप्थ में स्टडी नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गलत हम लोग स्टडीज करते हैं, और वो रट्टाफिकेशन वो चली जा रही है, वो चला ही जा रहा है, वो कभी गलतियां ठीक ही नहीं हुई हैं। मतलब मैंने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजमेंट्स देखे, और उसमें वो मिस्टेक्स निकाली हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं। मतलब शायद बाहर अंग्रेज हम लोगों पे हंसते होंगे, अरे यार ये कैसे पागल लोग हैं, इनको यही नहीं पता कि लिखना क्या है। और सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट्स में ये मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं। ये देखो, कंटेंट ऑफ द वेबसाइट इज बीइंग अपडेटेड, इज बीइंग, अच्छा ये कुछ मैसेज इन्होंने डाला हुआ है शायद, is being updated. This is a beta website. What is the beta website? Why you want to prepare a beta website like this? Is being updated. Being updating होना चाहिए ना। चलो, so I think you can understand some problems which are there, might be they are on some shifting servers, or I don't know what they are doing right away, but I think at least they have some information which they have circulated on your on the IGNO's website that something is going on the back end. It means somebody have already notified, and they updated them. These are the common mistakes which are going on. Probably they are updating the data, or I don't know, while updating the data they have overwritten these SSL certificates, है ना? So that could be one of the reason. और ये देखो ना अभी भी, चलो, whatever the content, so I think you can go through step by step. कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को, किस तरीके से कैसे चेक करते हैं? लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक और हमारा टॉपिक है जी, आगे हम लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली जोड़ने की कोशिश की, हालांकि ये कम्प्लीटली थियोरेटिकल पार्ट है, बट एटलीस्ट मैंने इसको थोड़ा प्रैक्टिकल जोड़ने की कोशिश की कि कैसे आप फुटप्रिंट्स निकाल सकते हो किसी वेबसाइट्स के, है ना, किसी डोमेन के। अब ये बताओ आगे चलो, और थोड़ा सा एडवांस में लेके चलते हैं, इसी को ही लेते हैं। चलो, लेट्स से हमारे पास आया SBI, या हमारे पास आया जैसे इग्नू। अब ये बताओ ignu.ac.in कहाँ पर होस्टेड है? इसका सर्वर कहाँ है? सर्वर का IP एड्रेस क्या है? किधर लोकेटेड है? ऑब्वियसली सर्वर तक आप डायरेक्ट नहीं पहुंचोगे क्योंकि वो प्राइवेट IP पे होगा, लेकिन उनका कोई तो पब्लिक IP होगा जिससे ये IP एड्रेस मैपिंग होगी। DNS आपको पता होगा, डोमेन नेम सर्विसेज होती हैं, जिसमें A रिकॉर्ड होगा। A रिकॉर्ड मालूम है क्या होता है? तो फॉर मोर डिटेल्स अगर नहीं पता तो प्लीज आपको चेक करना है व्हाट यू मीन बाय डोमेन नेम सर्विसेज, DNS।
डोमेन नेम सर्विसेज के पैरामीटर्स कौन से होते हैं, जैसे ए रिकॉर्ड, AA रिकॉर्ड, ऐसे एक और होता है MX रिकॉर्ड, ऐसे ही होता है सी नेम, ठीक है, ऐसे ही होते हैं PTR एंट्रीज। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जहां पर आपको ये देखना है कि उन रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है। सो यू हैव टू एक्चुअली टेक्निकली लर्न व्हाट इज द DNS रिकॉर्ड्स, understood how to identify those DNS, that is domain name services. So let's say I have a IGNO's website. So let me quickly copy this site and let me open a terminal. Although I am working on the Linux platform, this is my operating system. I hope you heard about that. We are the India's first person where we designed the Indian operating system. आप ये अगर देख पा रहे हैं अगर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये एक्चुअली एक शेड्यूलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमने 2011 में तो इसका पेटेंट डाल दिया था इंडिया में, राइट। ये मेरी कंपनी है शेड्यूलिटी, और दिस इज शेड्यूलिटी OS, ठीक है, जहाँ पर हम इट्स लाइक अ लिनक्स बेस्ड आर्किटेक्चर, जैसे आज की डेट में आप लोग यूबुंतु पे काम करते हैं, है ना, और ये सब बाकी सब बड़े सारे वर्जन्स हैं। हमारा OS जो है ये कॉर्पोरेट एडिशन, हैकर्स एडिशन, फॉरेंसिक्स एडिशन और गेमिंग एडिशन, कॉर्पोरेट एडिशन और सर्वर एडिशंस के हिसाब से तो हमारे फ्लेवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, राइट। एंड हम लोग लिनक्स बेस्ड काम करते हैं। तो आपको जो मैं कमांड्स चला के दिखा रहा हूँ वो लगभग आपके यूबुंतु अगर आप ले लेंगे वो फ्रीवेयर है, हमारा वाला पेड है, क्योंकि हम सिर्फ B2B में डील करते हैं और बहुत सारे सर्वर्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हमारा OS यूज़ करती हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड ऑल, right? So there we have a separate unique OS part, okay. And let me quickly show you, this is like a Linux kind of, which you can see. And now I have some commands to find out, and it's a very basic command. I think you can try even on Windows if you can. So basic commands like, ping. So if you ping, and remember, do not write your URL something like this. Don't use www and everything. Remove all the other parameters. Only I need a domain name. So let me try to go for a ping command, where ping command is a command which always use a protocol called ICMP, Internet Control Message Protocol on the back end. And the moment you will press enter, and you will see at least I'll get the IP address. I got a IP, right? I found a IP address. So let me copy this IP. And now because they mitigated in their firewall, they place the policy that they do not accept any ICMP. That is why there is no reply. So just simply close it. I send almost 24 packets, but 0 received at their end. That means they implemented firewall and they blocked the ICMP protocol. तो उन्होंने क्या इनेबल किया है, क्या ब्लॉक किया है, हम यहाँ से देख भी सकते हैं, ये टेस्टिंग कर सकते हैं। बट द बेस्ट पार्ट, आई गॉट अ IP एड्रेस। The moment you will get the IP address, now we have to go through with the footprinting. तो footprinting कैसे करते हैं आप लोग एक ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पर आप अब ये तो विंडोज से भी आप या किसी भी प्लेटफॉर्म से यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ जनरली, जैसे whois.domaintools.com एक वेबसाइट है, ठीक है, और इस पर आप जाके पेस्ट कर दीजिए ये वाला IP एड्रेस और एंटर कीजिए, तो ये बताएगा। अगर कैप्चा वगैरह आए तो उसको बस एक बार आई एम नॉट अ रोबोट कर दीजिएगा, ठीक है। ये बताता है एक्चुअली कि आपका IP एड्रेस कहाँ बिलोंग करता है, किधर ये डिप्लॉयड है। ये देखिए, ये है आ गया ना, इंडिया नेब सराय इग्नू में ही है ये IP एड्रेस। इग्नो मेन मैदानगढ़ी में आपका यूज़ हो रहा है ये वाला IP, और आपकी वेबसाइट वहीं से, सर्वर कहाँ है, इग्नो में ही होस्टेड है। तो उसका नेम, एड्रेस, डिटेल, फोन नंबर, सारी ईमेल आईडी सब आ जाएगा। दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज हु इज रिकॉर्ड, है ना। क्या कहते हैं इसको, हु इज क्या होता है, दैट इज देयर इज अ वन डिपार्टमेंट कॉल्ड ICANN, है ना। ICANN is one of the department, and that department gives you who basically take cares for the global IP addresses and domain names registered to whom. So that database being managed by the organization called ICANN, it's a sister concern body of internet governing bodies, right? So that is one of the governing body of internet societies, and there it is connected
वहां से हमें पता चला ये वाला आईपी एड्रेस इग्नू का है ना, और ये मेल आईडी है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट वी कैन रिपोर्ट टू देम रिलेटेड टू दिस आईपी। वहां पे डेडिकेटेड पर्सन कौन है, वहां पे डिप्टी डायरेक्टर का रोल है जो कि टेक केयर कर रहा है, और उनका मोबाइल नंबर मिल गया, देख रहे हो, डायरेक्ट मोबाइल नंबर मिल रहा है। और तो और डिप्टी डायरेक्टर के साथ कोई वहां पे मिस्टर के कौन है, गौथन गौथमन, है ना, गौथमन कोई मिस्टर हैं, मिस्टर गौथमन के हैं, जो कि मैदानगढ़ी में इसका टेक केयर कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर है और उनका ईमेल आईडी भी आ गया। तो आपको अगर इस आईपी एड्रेस रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आप इग्नू की वेबसाइट ढूंढ मारो, आपको ये डिटेल मिलेगी ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। आप कॉन्टैक्ट अस देख लो, आप कुछ देख लो, आपको वो चीज़ कभी मिलेगी नहीं। ये बड़ा जनरल इंफॉर्मेशन है। अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी वेरी जनरल इंफॉर्मेशन। बट आपको रिपोर्ट कहाँ करना है? इन फोन नंबर्स पे नहीं, कभी ढंग से आप डायरेक्ट पर्सन से बात ही नहीं कर पाओगे। तो एग्जैक्टली कौन पर्सन है जो कि ये सारे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, वो ढूंढने के लिए आपको चाहिए क्या, हु इज रिकॉर्ड्स, जो बेसिकली आपको एग्जैक्ट नेम, नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब बताता है। तो इस तरीके से आप ढूंढने का तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए, सर्चिंग चेंज कीजिए। दिस इज फुट प्रिंटिंग, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ फुट प्रिंटिंग, और ये प्रैक्टिकल आपको दिखाना होता है, और ये आपको एमएस वर्ड में पेस्ट करके रिपोर्ट बना के आपको प्रैक्टिकल वहां पे दिखाना होगा। 3 घंटे के प्रैक्टिकल में अगर ये क्वेश्चन आता है कोई भी वेबसाइट से रिलेटेड, आप उसकी वनरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करो जी, डोमेन नेम की, वेबसाइट की, आपको पब्लिकली क्या क्या मिलता है। सो व्हाट इज योर अप्रोच? तो प्रैक्टिकल अप्रोच तो आपको ऐसे ही मिलेगी कि आपको क्या करना है, कैसे स्टेप्स लेने हैं। अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जी सभी को? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। तो फुटप्रिंट्स निकाल लिए। अब जब फुटप्रिंट्स निकाल लिए तो ठीक है, आपको आईपी एड्रेस तो पता चल ही गया है। जब आपको आईपी एड्रेस पता चल गया तो चलो इसके देखें स्कैनिंग करके इनके पीछे बैकएंड में कौन से पोर्ट्स हैं। तो sudo nmap स्पेस आपको आईपी लिखना होता है, ठीक है। इससे अब एक चीज और, ये nmap क्या है? nmap is a one of the utility which actually scans all the ports, all the public ports, open ports of that particular IP address or a domain name। तो कौन से डोमेन के लिए कौन सा पोर्ट नंबर है, डेडिकेटेड है, ठीक है, ये चीज की डिटेल कहां मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको, समझ में आ गया? तो ये डिटेल्स आपको मिलती हैं, हमें पोर्ट स्कैनर्स यूज करने होते हैं। विंडोज बेस भी बहुत सारे पोर्ट स्कैनर्स आते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज यही nmap एक अपने आप में nmap बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आप लोगों को प्रैक्टिस क्या करनी है, एक बार जरूर nmap की चीट शीट स्टडी करना। nmap चीट शीट्स, ये देखो ये मिलती हैं चीट शीट्स, nmap चीट शीट्स। तो nmap के चीट शीट्स का मतलब है कि कौन सी कमांड से क्या क्या निकाल सकते हो, ठीक है। ये सब ओपन सोर्स है। ये देखो nmap किया आईपी तो एक सिंगल आईपी स्कैन होगा, ठीक है। मल्टीपल आईपी स्कैन करने तो स्पेस देके आप मल्टीपल आईपीस को स्कैन कर सकते हो। रेंज को स्कैन करना है, पूरे लैन को स्कैन करना है, तो क्या करोगे, आईपी 1-254, जैसे पूरा क्लास सी नेटवर्क को स्कैन करना है तो क्लास सी नेटवर्क आपका स्कैन हो जाएगा, है ना। कोई रेंज को स्कैन करना है, किसी डोमेन को स्कैन करना है ना। सीआईडीआर वैल्यू, सीआईडीआर होता है कि आपके वही, ये बेसिकली क्लास सी ही है, सीआईडीआर भी, सीआईडीआर भी एक क्लास सी ही है, ठीक है। और उसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी कि किस तरीके से आपका कौन सा सर्विस क्लास सी नेटवर्क के अंदर है, आप वो चेक कर सकते हो। रैंडम कंप्यूटर्स, रैंडम कोई भी 100 कंप्यूटर स्कैन कर सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूड कर दो, पूरे लैन को स्कैन करे लेकिन मेरे राउटर को स्कैन ना करे, तो यू कैन गो विद एक्सक्लूड ऑप्शंस, समझ रहे हो। तो nmap के अंदर आपको हजारों ऐसी ऑप्शंस मिल जाएंगी, और बहुत बड़ा एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। पर्टिकुलर प्रोटोकॉल लेवल स्कैनिंग करनी है, टीसीपी के स्कैनिंग करनी है, यूडीपी स्कैनिंग करनी है ना, विंडोज के पोर्ट स्कैन करने हैं, एसी के लेवल, तो उसके लिए स्विचेस हैं, उसके आगे ऑप्शंस हैं, आपको वैसे ऑप्शंस को यूज करना है।
तो आपको इस तरह से होस्ट की डिस्कवरी करनी है, उनका डोमेन नेम क्या है, कंप्यूटर का नाम क्या है, यूजर का नाम क्या है, यूजर आइडेंटिफिकेशन, पोर्ट, पोर्ट की स्कैनिंग, और उसमें कौन सी सर्विसेज बैकएंड में चल रही हैं, उससे रिलेटेड ये देखो ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपके पास अगर लैनिक्स है तब तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि 1 मिनट में लैनिक्स में इंस्टॉल हो जाता है पोर्ट स्कैनर। ठीक है, पोर्ट की रेंज तक दे सकते हो, पोर्ट कहाँ तक, 65,535 तक के सारे पोर्ट्स को स्कैन करे, स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्ट नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही सर्विसेज वर्जन डिटेक्शन करनी है, किसी की ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करना है तो क्या लगाओगे, -O। रिमोट ओएस डिटेक्शन करना है, -O। और भी डिटेल्स हैं, OS स्कैन -लिमिट्स। सो बेसिकली वो एक एक करके आप पढ़ेंगे तो आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस, उनके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, वो कितना स्लो है, कितना फायर है, एग्रेसिव है, इनसेन है, पोलाइट है, ये इन्होंने उसमें कोई आइडियाज लगाया कि नहीं लगाया, तो आइडियाज को डिटेक्ट करने के लिए, राइट, इंट्रूजन डिटेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका टाइमिंग्स और परफॉर्मेंस को वैलिडेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके स्विचेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे कितना डिटेल्स हैं। NSE स्क्रिप्ट्स बेसिकली थर्ड पार्टी की ना, कुछ इन्होंने क्या ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बनाई होती हैं, तो आप उनके आगे उसके आगे स्क्रिप्ट्स या खुद का कोई भी डिफॉल्ट या बैनर को आइडेंटिफाई करना है, HTTP जैसे प्रोटोकॉल, वाइल्ड कार्ड ढूंढने हैं, स्कैन विद ऑल द वाइल्ड कार्ड्स, है ना, HTTP के बैनर्स को ढूंढना है, डेटा निकालना है, इस तरह से आप इनके कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, आप डेटा निकाल सकते हो। ऐसे ही स्क्रिप्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं और वो आपको वैसे रिजल्ट्स बना के देंगे, तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। फायरवॉल आईडीएस इवेजन हो सकता है या नहीं हो सकता है, फायरवॉल को एनालिसिस कैसे करें, ठीक है, स्पूफिंग होगा या नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। सो आप एक बार इसको अच्छे से इसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट। अब विंडोज़ यूज़र क्या करेंगे, ये तो लिनक्स बेस्ड है, तो विंडोज़ यूज़र कहाँ जाएंगे, तो विंडोज़ यूज़र एक सॉफ्टवेयर डाल लीजिए अपने मशीन में, ZenMap, ZenMap नाम से सॉफ्टवेयर है, ZenMap। तो ये देखिए मैं लिख रहा हूँ डाउनलोड ZenMap। अरे देखो ये मैं बोलता बाद में हूँ, ये पहले ही अपने आप देख लेता है, ये देख रहे हो कैसे हमारे मशीन्स हैक होती है। मैंने तो ZenMap लिखा भी नहीं अभी तक, पूरे मशीन ऑन करने के बाद भी बस अभी नाम लिया है, इसको पहले ही पता है डाउनलोड के बाद मैंने ZenMap मेरे को चाहिए। तो ये AI है जी, जो आपका बिहेवियर पहले से ही जान रहा है, समझ रहे हो। तो ये भी एक हैकिंग है, ये आपके बिहेवियरल हैकिंग है, क्योंकि मैंने Nmap की वेबसाइट खोली है तो डाउनलोड के बाद मैं सीधा ZenMap पे ही जाऊंगा, उसे ये पता है। So you can see this is the official website, and we can identify the behavior, how the people are working on the back end. You please go and download ZenMap on Windows. That could be similar like this kind of application, कुछ ऐसी एप्लीकेशन दिखेगी। टारगेट में आप अपना वही डाल दीजिएगा और उसमें कमांड्स में नीचे वही सारे ऑप्शंस जो आपने Nmap में देखे हैं, ZenMap में आप यहाँ से लिख के स्कैन करेंगे, वो रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दिस वे यू कैन एनालाइज ग्राफिकली। इज दैट क्लियर। तो एवरीबडी, मतलब ये समझ लीजिए ये आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में आता है, और पोर्ट स्कैनिंग तो करना ही होता है। ये बेसिक इनिशियल स्टेप्स हैं किसी भी वेबसाइट्स के अंदर, वो कहीं बोला नहीं जाएगा कि आप Nmap करके दिखाओ, वो आपसे ये बोला जाएगा भाई वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करो किसी डोमेन का, किसी आईपी का। तो आपने करना क्या है, स्टेप्स क्या करने हैं, प्रैक्टिकल क्या करोगे, है ना। तो आपको करना है सोशल इंजीनियरिंग, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग। तो आपके ये स्टेप्स रहेंगे, एटलीस्ट ये करना है। उसके बाद VAPT के बड़े सारे टूल्स हैं, सर्वर्स हैं, अटैक्स हैं, वो सब बात की बात है, लेकिन फर्स्ट स्टेप्स आपके हमेशा यही रहेंगे, याद रखना। किसी भी चीज को सिक्योरिटी में इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रोसेस करने के इनिशियल स्टेप्स यही है। सबको क्लियर हो गया जी? इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. गुड, ग्रेट।
So let's go to the next step then. After you pursue this part, टोटल पोर्ट्स कितने होते हैं जी? वाइवा में क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर? डू यू नो पोर्ट्स? एवरीबडी, आई होप यू नो व्हाट आर द पोर्ट्स. टोटल कितने पोर्ट्स होते हैं? एनीवन कैन आंसर? व्हाट डू यू मीन बाय पोर्ट्स, बाय द वे? अरे स्कैनिंग क्या करोगे? एनमैप से क्या रिजल्ट निकालोगे? सर पोर्ट स्कैनिंग करेंगे, 65,000 पोर्ट है अपने टोटल. नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, एग्जैक्ट नंबर बोलो, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू नहीं. एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या है? बताऊं? लिखो. टोटल पोर्ट्स होते हैं 65,536. कितने होते हैं? 65,536. लेकिन शुरू किससे होते हैं? शुरू जीरो से होता है. जीरो भी काउंटेबल होता है, ठीक है? तो एग्जैक्ट नंबर रेंज क्या है? रेंज है आपकी जीरो से लेके 65,535 तक. तो टोटल हो गए 65,536 पोर्ट. एग्जैक्ट नंबर का आंसर देना. वाइवा में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर, है ना? टोटल पोर्ट्स यानी, और ये कहाँ होते हैं? बेसिकली दीज ऑल आर द सॉकेट, सॉफ्ट सॉकेट्स, है ना? फॉर एवरी इंटरफेस, फॉर एवरी नेटवर्क इंटरफेस, if you receive any data packets or you transfer any data packets, that is always being moving through ports. ये मैंने शायद आपको एक प्रीवियस क्लास में आपको करवा के दिखाया भी था. आप क्या ऐसे देखोगे, सूडो, है ना, नेट स्टैट. ये आप विंडोज में भी चला सकते हो कमांड. सूडो मत लिखना, बस नेट स्टैट लिखना. CMD खोलिए विंडोज में और आप वहाँ पे भी कर सकते हो. नेट स्टैट स्पेस -n लिख देना. n मैंने AN लिखा है, पाइप मोर, ताकि आपको मैं पूरा रिपोर्ट दिखा सकूं. तो ये देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये रहे मेरे प्रेजेंट नेटवर्क कनेक्शंस. ये रहा मेरा प्रोटोकॉल, कौन से प्रोटोकॉल से मैं कनेक्टेड हूँ. रिसीविंग डेटा पैकेट्स इन द क्यू, sending data packets from my machine in the queue, my local IP address. So presently my local IP, my system IP is 192.168.1.6 and the port numbers which are there, and colon के बाद आते हैं पोर्ट नंबर. यानी मेरे कंप्यूटर का इस समय 57,402 नंबर का पोर्ट से डेटा जा रहा है इस वाले IP एड्रेस को. और ये IP कौन है? 34.8.7.18 कोलन कौन से पोर्ट को? पोर्ट नंबर 443 को. तो यानी सर्वर साइड पे, याद रखना सर्वर साइड का, जैसे हर एक प्रोटोकॉल के अपने पोर्ट नंबर्स होते हैं. ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, पढ़ना जरूर. पोर्ट नंबर 443 किसके लिए होता है? कौन बताएगा? पोर्ट नंबर 443 किसके लिए होता है? सर HTTPS के लिए. वेरी गुड. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. द पोर्ट नंबर 443 इज ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर HTTPS प्रोटोकॉल. मतलब मेरी मशीन बैकएंड में किसी आईपी के पोर्ट नंबर HTTPS पे डेटा भेज रही है और कनेक्शन एस्टैब्लिश है. ये रियल टाइम डेटा है. अब ये आईपी कौन है? कहां से ढूंढोगे? क्या करें? फटाफट इसको कॉपी करा. क्या करें, है ना? यहां से कॉपी करा. ये देखो मैंने सीधा नेक्स्ट मैंने इसको फटाफट सूडो करा, nmap करा. आप nmap भी करके देख सकते हो ये कहाँ है. यहाँ हम जर्नली सबसे पहले फुटप्रिंट्स निकालते हैं. तो फुटप्रिंट्स के लिए मैंने आपको बताया whois.domain2s.com/IP डालिए. बट लैनिक्स में ना एक अच्छी बात ये है, इनबिल्ट कमांड है whois. लैनिक्स में इनबिल्ट कमांड है सीधा whois. हमें कुछ वो कैप्चा और वहाँ जाने की जरूरत नहीं है. तो सीधा हम यहीं से कमांड्स को रन कर सकते हैं. अच्छा, whois को इसमें डलानी है. मैंने ये नए मशीन किया है एक बार. whois सिंपली आई जस्ट इंस्टॉल. देखो लैनिक्स में कितना आसान है. मेरे को कोई गूगल नहीं करना है, कोई सॉफ्टवेयर पैकेज अलग से नहीं डालना है. बस इतना लिखा, मेरा whois पैकेज इंस्टॉल हो गया. अब लिखूंगा whois, IP लिखा, एंटर करा, उसकी सारी रिपोर्ट आ गई. देख रहे हो लैनिक्स कितना आसान है. तो मेरा डेटा कहाँ जा रहा है? गूगल पे जा रहा है. ये देखो ये किसका है? ये गूगल का IP एड्रेस है कहीं ना कहीं. सो गूगल का ये देखो, कैलिफोर्निया का, US का, ये इनके नाम पे रजिस्टर्ड है.
तो अल्टीमेटली हम गूगल मीट से कनेक्टेड है ना, तो ऑब्वियसली ये सीरीज हैं, CIDR सीरीज हैं, इनसे इस सीरीज, इतनी सारी सीरीज के आईपी एड्रेस किसके हैं? गूगल के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो ये कौन डिटेल दे रहा है? हु इज कहां से रिपोर्ट लाता है? आई कैन, आपको बताया मैंने, है ना। आई कैन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा हु इज रिकॉर्ड्स रखती है। तो आई कैन एक हु इज सर्विस प्रोवाइड करती है ग्लोबली ओपन प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप किसी का आइडेंटिफिकेशन कर सको, फुटप्रिंट्स निकाल सको कि वो आईपी किसको बिलोंग करता है। तो इससे पता चल गया ना, अरे भाई मेरा नेटवर्क ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डेटा गूगल को जा रहा है। तो ये वाला ऑथेंटिकेट हो गया, ये वाला मेरा चैनल ऑथेंटिकेट हो गया कि नहीं? ठीक है, ऑब्वियसली मैं गूगल से कनेक्टेड हूं तो मेरा डेटा जाएगा ना गूगल पे। बट स्टिल देयर आर मेनी आईपीस, still there are many systems where my machine is connected. So where my machine is connected, I need to figure out, I need to find out, and accordingly how it works, that is the best practice. You have to figure, you have to check. समझ में आ गया कैसे चेक करना है? तो आप विंडोज में जाके whois.domaintools.com या विंडोज गूगल पे जाओ, whois लिखो, मेरे ख्याल से 1 लाख साइटें आ जाएंगी। किसी भी whois सर्विस प्रोवाइडर पे जाके अपना आईपी एड्रेस टाइप करना, सेंड करना, वो आपको रिपोर्ट निकाल के दे देगा। और वो ऑथेंटिक है, ये एडमिसिबल है कोर्ट में, ये वाली रिपोर्ट भी, दैट इज एडमिसिबल टू द कोर्ट आल्सो। समझ गए? तो ये एविडेंसेस हैं जिसे हम चेक करते हैं कि कौन कहाँ कैसे कनेक्टेड है। ये रिपोर्ट कैसे निकालोगे? पोर्ट्स कौन से हैं आपका? तो डिफॉल्ट पोर्ट्स को स्टडी करो, गूगल करो कि पोर्ट लिस्ट, तो पहले पोर्ट नंबर से लेके आखिरी पोर्ट नंबर तक कौन सा पोर्ट बाय डिफॉल्ट कौन से प्रोटोकॉल या सर्विस को डेडिकेटेड है, उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। एटलीस्ट कॉमन पोर्ट्स याद रखो। पोर्ट नंबर 21 फॉर FTP, पोर्ट नंबर 22 फॉर SSH, पोर्ट नंबर 23 फॉर टेलनेट, पोर्ट नंबर 25 फॉर SMTP, पोर्ट नंबर 53 फॉर DNS सर्वर्स, पोर्ट नंबर 80 फॉर HTTP, पोर्ट नंबर 110 फॉर POP3, 143 फॉर IMAP, है ना। और उसके बाद आपके HTTPS 443, है ना, SMB 445, है ना, 135 139 फॉर माइक्रोसॉफ्ट RPC कॉल्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में मिलती हैं, 631 लिनक्स प्रिंटिंग सर्विसेज। तो ये कुछ कॉमन पोर्ट्स हैं जो बार बार हम यूज करते हैं। MySQL सर्वर पोर्ट नंबर 3306। तो स्टैंडर्ड पोर्ट्स मिलेंगे। टॉर ब्राउजर, टॉर नेटवर्किंग करते हो, टॉर नेटवर्किंग अगर आपने उसमें डाल रखा है, कहीं डार्क वेब वगैरह में जाते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका एक टॉर नेटवर्क कनेक्ट होगा, एसोसिएट होगा। टॉर नेटवर्क आपके मशीन पे कौन से पोर्ट्स खोलता है? 9040, 9050। तो आपको ना ये चीजें इतनी रट जानी चाहिए, ये आपके ब्लड में होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। और यही वाइवा में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, थ्योरी में यही चीजें कुछ ना कुछ पूछी जाती हैं। तो करना कुछ नहीं है, गूगल पे जाइए, लिखिए पोर्ट लिस्ट, और पूरी की पूरी पोर्ट लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन pursue with that down list, and I think you can easily find all the details about all the ports and the services and the protocols working on that. And थोड़ा सा और एडवांस स्टडी करें, so if you go for a little in a different approach, why don't you identify the list of the ports dedicated to Trojans? So what all you need to write on Google? Again, go and write Trojan port list. So Trojan port list will give you the name of those Trojans, those malwares which were, assigned with certain port numbers to hack those services. And there are thousands of services or the applications, renowned applications being designed on dedicated ports. So how can you identify these things? It's quite easy. You just need to explore it. समझ में आ रहा है या नहीं? तो देखिए, पढ़ने का अप्रोच क्या है। अगर आप हैकिंग की तरफ से सोच रहे हैं तो पोर्ट लिस्ट ढूंढिए। अगर आप सिक्योरिटी के हिसाब से सोच रहे हैं तो फिर देखिए पहले तो प्रोटोकॉल्स कौन से, सर्विसेज क्या है, और उसको हम कैसे मिटिगेट करेंगे, उसके ऊपर हमें क्या पॉलिसीज लगानी है, कैसे फायरवॉल डेडिकेट करना है। फायरवॉल से काम नहीं होगा तो उसके बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी होगी? IDS की होगी, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की होगी। ये आपके शायद कोर्स में भी है, एक कहीं मैं देख रहा था, इसमें नहीं लिखा, बट एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम्स के अंदर ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं।
Got it? Is that clear to all? Yes, sir. Great, perfect. तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक समझ में आ गया होगा. लेट अस गो एंड गेट इनटू नाउ ईमेल हैकिंग, राइट? व्हाट इज ईमेल हैकिंग एंड हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट द ईमेल्स. तो चलते हैं जी, चलिए अब एक मेल खोलते हैं. अब मेल्स को पढ़ने से पहले मुझे ये बताइए, सबसे पहले मेल सेंड कैसे होती है, कौन सा प्रोटोकॉल है? मेल को ये लिख ही लीजिए ना, ईमेल से रिलेटेड अगर कुछ भी आएगा तो पोर्ट नंबर्स पूछे जाएंगे, है ना? तो मेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? एसएमटीपी. एसएमटीपी का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? 25. अगर मैं एसएमटीपी एस यूज करता हूं, यानी एसएमटीपी विद एसएसएल, एसएमटीपी विद एसएसएल लेता हूं, अगर मैं टनल डेटा भेजता हूं तो मेरा पोर्ट नंबर बदल जाएगा. वो पोर्ट नंबर होगा 25 नहीं होगा, उसका पोर्ट नंबर होता है 465. क्या होता है? 465 पोर्ट नंबर होता है. लेकिन मैं लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ चलूं, यानी एसएमटीपी विद एसएसएल विद टीएलएस, जैसे हमने एचटीटीपीएस को पढ़ा, ठीक है? तो ऐसे ही प्रोटोकॉल ही तो बदल रहा है, डेटा का मोड ही तो बदल रहा है, बाकी सिक्योरिटी टनल, सिक्योरिटी लेयर सब सेम है. यानी मैंने एचटीटीपी को पढ़ा था, एचटीटीपी विद एसएसएल विद टीएलएस. ऐसे एसएमटीपी प्रोटोकॉल पे काम करें तो एसएमटीपी विद एसएसएल विद टीएलएस. तो अगर आप टीएलएस के साथ काम करोगे, एसएमटीपी का अगर पुराना वर्जन ले रहे हो एसएमटीपी एस का, एस मतलब एसएसएल, अगर एसएसएल का पुराना वर्जन है तो होगा कौन सा पोर्ट नंबर? 465. लेकिन एसएमटीपी एस में एसएसएल विद टीएलएस करोगे तो पोर्ट नंबर होगा 587. तो आज अगर आपको जीमेल डाउनलोड करा कभी किसी ने, आप सबके जीमेल आईडीज हैं, सबके जीमेल आईडी भर गए होंगे, कभी आपने ट्राई किया हम सारी मेल्स डाउनलोड कर लें? हालांकि गूगल ना एक ऑप्शन देता है कि वो पूरा सारा मेल का जिप बना के आपको एक लिंक दे देता है, वो कहता है वहां से डाउनलोड कर लो, इकट्ठा मेल डाउनलोड कर लो. बट वो गार्बेज है, वो बैकअप के लिए तो अच्छा है, अदरवाइज यूज कैसे करोगे उसको? वो बैकअप लेवल तक के लिए तो ठीक है. तो अल्टीमेटली इसकी जगह एक बेटर टेक्निक और बताता हूं, जो रियल टाइम डेटा आप एक्सेस भी कर सकोगे. आप विंडोज यूज कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नाम का टूल होगा. अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर है थंडरबर्ड, वो यूज कर लो और उसमें जाके अपने जीमेल आईडी को कॉन्फ़िगर कर लो. तो क्या होगा? कॉन्फ़िगर करने से आप अपनी मेल्स ऑफलाइन अपने डिवाइस से डायरेक्ट भेज सकोगे, बिना ब्राउजर के, बिना ग्राफिकल किसी एप्लीकेशन के. तो आप जो यूज कर रहे हो वो कौन सा है? या तो थंडरबर्ड यूज कर लो या फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज कर लो. वहां पे 2-3 प्रोटोकॉल्स मिलेंगे. एक होगा एसएमटीपी, जो करना ही करना है कॉन्फ़िगर. तो गूगल जीमेल आपको देता है एसएमटीपी एस विद टीएलएस वाला, तो वहां पे एसएमटीपी एस टीएलएस ले लेना और पोर्ट नंबर 587 लेना है. अंडरस्टूड? कौन सा पोर्ट नंबर लेना है? 587 पोर्ट नंबर लेना है फॉर सेंडिंग द एसएमटीपीएस. और मेल रिसीव करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, POP3 से कर लो या IMAP से कर लो. मोबाइल का अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसमें IMAP होता है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑलवेज कम्स अक्रॉस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन POP3 प्रोटोकॉल एंड IMAP प्रोटोकॉल, वेयर both the protocol used to receive the mails. So if you have a POP3, that is post office protocol version 3. So if it is a regular version, regular port, then the port number is 110. तब 110 नंबर होता है POP3 का. If it is a IMAP, then the by default port number is 143. But at the same time, if I'll go with SSL, right? So POP3 with SSL, so that becomes POP3S. And same way with IMAP with SSL, that becomes IMAP-S. तो ऐसे में आपको POP3S वेयर आपको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? तो और IMAP भी कॉन्फ़िगर करना है. तो IMAP-S का पोर्ट नंबर है 993 और POP3S का पोर्ट नंबर है 995. तो गूगल आपको मेल रिसीव करने के लिए बेटर है आप IMAP करोगे. तो IMAP का एक फायदा क्या है समझो. IMAP अगर आपने कॉन्फ़िगर करा तो आपने अगर लोकल अपनी मशीन से कोई मेल डिलीट करी तो पता है वो ना सिंक्रोनाइज हो जाता है और सर्वर से भी मेल डिलीट हो जाएगी. सर्वर पे कोई मेल आएगी वो ऑटोमेटिकली आपकी मशीन पे भी सिंक हो जाएगी, आपका बस मशीन इंटरनेट पे कनेक्ट होगा. तो मतलब लेट्स से आई एम अ पर्सन मोर ऑन रोमिंग,
अगर मैं घूमता रहता हूँ, जैसे मेरा रोमिंग का जॉब ज़्यादा रहता है कई बारी, तो मैं अगर फ्लाइट में हूँ तो फ्लाइट में अगर मेरे को इंटरनेट नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, फ्लाइट बोर्ड करने से पहले एक बार इंटरनेट ऑन करके आउटलुक खोल लूंगा, जितनी मेल्स आनी है मेल आ जाएंगी, जितनी जानी है चली जाएंगी। ठीक है, तो हो गया। अब मैं से 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए फ्लाइट में हूँ, तो फ्लाइट में मैं क्या करूंगा, अपना आउटलुक खोलूंगा, प्रॉपर मेल स्टडी कर सकता हूँ ऑफलाइन। ऑफलाइन मेल्स को स्टडी करूंगा, उसका रिप्लाई जनरेट करूंगा, मेल सेंड भी कर दूंगा, लेकिन मेल जाएगी नहीं, वो मेरे आउटबॉक्स में पड़ी होगी। मेल्स कहाँ होंगी, आउटबॉक्स में पड़ी रहेंगी, लेकिन मैंने तो रिप्लाई बना के सब कुछ काम खत्म कर दिया ना। अब मेरा काम खत्म हो चुका है, लेकिन मेल गई नहीं है, वो मेल्स पड़ी है मेरे ही लैपटॉप के आउटबॉक्स में। जैसे ही मैं फ्लाइट डीबोर्ड करूंगा, व्हाट आई डू, आई कनेक्ट अगेन माय लैपटॉप विद इंटरनेट। कुछ करना ही नहीं है, आउटलुक अपने आप ही जो मेल जाने वाली है वो सेंड कर देगा, और जो रिसीव होने वाली है वो रिसीव कर लेगा। सो आई गेट द सॉल्यूशन। मैंने टाइम यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, इवन इफ द इंटरनेट इज नॉट देयर। तो ऐसा आप कर सकते हो क्या, इंटरनेट नहीं है और आप मेल का रिप्लाई कर रहे हो, मेल चेक कर रहे हो? What is that? It means we need to download those mails. We need to create the copies. So two protocols, one is POP3, one is IMAP. Generally POP3 creates the duplicate copy. Duplicate copy, right? So अगर मैंने फाइल डिलीट करी है अपने लैपटॉप से, doesn't mean वो सर्वर से भी डिलीट हुई है। There is no synchronization direct. हालांकि उसमें ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं POP3, और उसमें आपको चेक बॉक्सेस मिल जाते हैं, आपको सिंक करके रखना है नहीं रखना है, but that's an optional part. The default service is like, in case of POP3 there is no synchronization, but you will get a duplicate copy from the server in your MUA. इसको technically बोलते हैं हम लोग MUA, mail user agent. Okay, so your all the mail comes to your any software which belongs to MUA category, right? वो थंडरबर्ड हो, वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो, यूडोरा लाइट हो, बड़े सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी सारी मेल्स आपके पास बैकअप में आ जाएंगी। ये माइक्रोसॉफ्ट वाला जो वो PST एक्स या PST फाइल्स बनाता है, आप वो फाइल्स को डाउनलोड करके रख लो, जब चाहिए अपना किसी और मशीन पे शिफ्ट भी कर सकते हो। ऑफलाइन आपके पास मेल्स रहेंगी, और जीमेल भी खाली हो जाएगा। गूगल को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी एप्पल को पैसे देने की जरूरत नहीं है, अपना क्लाउड ड्राइव्स भर भर के रखने की कोई जरूरत नहीं है। Understood? So you will get a copy of those mails and download and free your space. So that is one of the best practice how you can do these kind of things. Understood? समझ में आया सबको? तो हम लोग इस तरीके से इसका बैकअप ले सकते हैं। तो प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स हैं, राइट? अब सारी सेटिंग्स ये सब कहाँ होती हैं, ये होती हैं आपके MX रिकॉर्ड, यानी DNS वैल्यूज मिलेंगी, जो मैंने बोला था डोमेन नेम सर्विसेज। क्योंकि डोमेन खरीदा और डोमेन का मेल सर्वर कहाँ है, मेल सर्वर कहाँ से मेल भेज रहा है, और वो जो मेल सर्वर है उसका एक DNS हमेशा वैल्यू होती है। इसको आप देखने के लिए NS लुकअप भी कर सकते हो। लेट्स से ये देखो, हम sudo NS lookup hyphen type equals to MX रिकॉर्ड मुझे देखना है किसका, ignu.ac.in। क्या कोई मेल सर्वर है डेडिकेटेड फॉर इग्नू? तो ये देखो जी, इग्नू का मेल सर्वर कुछ नहीं है, वो गूगल यूज कर रहे हैं, गूगल का वर्क स्पेस यूज कर रहे हैं। ये भी पता चल गया, ignu.ac.in में जितने भी मेल आईडीज इन्होंने लिखे हुए हैं। 1 मिनट में कंसेप्ट पता चलता है कि नहीं चलता? समझ में आया आपको? तो ये बेसिकली मैंने क्या लिखा, मुझे MX रिकॉर्ड निकाल के दिखाया, यानी मेल एक्सचेंज सर्वर कौन से हैं इस डोमेन नेम के लिए। हालांकि ये चेक करने के लिए आप अगर लिनक्स नहीं है आपके पास, विंडोज है, तो विंडोज में कोई ना कोई वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे एक बहुत अच्छी वेबसाइट है mxtoolbox.com। आप ब्राउजर पे जाके mxtoolbox.com लिखिए, यहाँ पे आप ignu.ac.in लिखिए एंड जस्ट गो फॉर MX रिकॉर्ड, MX लुकअप। ये वही रिजल्ट बना के दे देगा जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये देखिए, ये सारा आ गया ना, गूगल के सर्वर्स हैं और गूगल के IP एड्रेसेस हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है अभी? समझ में आ रहा सभी को? राइट? तो हम लोगों को ढूंढना आसान हो जाता है, बैकएंड पता चल जाता है
कि कैसे फुटप्रिंट्स क्या हैं, यानी आपके अकॉर्डिंग gmail.com होता है ना, या ऐसे जीमेल पे अगर आप कहते हो मेल भेज रहे हो आपको, और पोर्ट स्कैन करोगे, अब देखो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, अगर आपने इसका पोर्ट स्कैन करा, सुनो, आपने इग्नू का पोर्ट स्कैन करा ignu.ac.in में, और आपको क्या दिखेगा, सर पोर्ट नंबर 25 तो खुला ही नहीं है, पोर्ट नंबर 465 भी नहीं खुला, वो पोर्ट नंबर 587 भी नहीं खुला, पोर्ट नंबर 110 है ना, 143, 993, 995, इनमें से कोई पोर्ट ही नहीं खुला है, लेकिन सर फिर भी मेल आ रही है और मेल जा रही है। अरे भाई, इस सर्वर में नहीं खुला है, क्यों? क्योंकि ये सर्वर मेल सर्वर नहीं है, ये वेब सर्वर है, ये सिर्फ वेब कंटेंट को दिखाने के लिए है, ना कि ईमेल्स भेजने के लिए। ईमेल के लिए डीएनएस में इन्होंने एंट्री करी हुई है, और उन्होंने कहा हमने आउटसोर्स कर दिया अपने मेल सर्वर को। तो देखो, गवर्नमेंट के साइट है, अपने ईमेल सर्वर इनके पास नहीं है, वो गूगल का मेल सर्वर यूज कर रहे हैं, है ना। सो दैट इज ऑल्सो द बैड प्रैक्टिस, आई वुड से। अरे भाई, मुश्किल से आधा घंटा लगता है आपको ईमेल सर्वर बनाना, आप अपना खुद का मेल सर्वर बना के कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अगर आपको लिनक्स आता है तो। So why the data, Indian data is not in India? है ना? Why the data being accessed by third party providers, and these third party providers, अब इनको क्या करना है? मतलब आज अगर मेरे को CIA को आइडेंटिफाई करना है कि पूरा इग्नू क्या कर रहा है, वो सीधा गूगल से ये सर्विसेज ले ले, है ना। और बड़े सारे जो यूएस में बैठी हुई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उन्हें इंडिया आने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी गूगल डिप्लॉय किया हुआ है, दे आर ऑलरेडी ऑन अस। एक एक बिहेवियर, एक एक फाइल, एक एक कंटेंट उनको पता चलेगा, क्योंकि फाइनली एवरी डेटा इज गोइंग थ्रू गूगल। तो गूगल को पता है पूरे इग्नू में क्या चल रहा है, क्योंकि सब मेल सिस्टम से काम होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। डिजिटल एविडेंस ईमेल है आपका, so probably they are hacking your details on the back end, because the entire control is with them. So that is especially, I would say, it's a part of a critical infrastructure model for the government, and government has already been decided। इसलिए गवर्नमेंट के जितने भी बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों के पास gov.in ईमेल आईडी मिलेगी, या nic.in की ईमेल आईडी मिलेगी। जितने भी गवर्नमेंट हाई प्रोफेशनल जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उन सब के पास गवर्नमेंट ईमेल आईडीज मिलेंगी, और उनको बड़ा क्लियर बोला गया है, कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जीमेल से नहीं भेजना है। दैट इज द पॉलिसी, इट्स अ स्टैंडिंग ऑपरेशनल प्रोसीजर फॉर ट्रांसफरिंग एनी डेटा, government data within that organizational data to use by their government channel. Then why our academic, which are also the part of a government, why they are using outsourced services? So these are the somehow the basic concepts to identify. See, these are the some challenges even in our national critical information infrastructure policies. समझ में आया? सो दैट कुड बी अ चैलेंज, बिकॉज इस समय तो ये हो रहा है ना, इग्नू में जो भी काम हो रहा है गूगल को पता है, गूगल को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, गूगल को पैसा भी मिल रहा होगा इग्नू से, और डेटा भी मिल रहा है, दो चीजें मिल रही है, डबल फायदा हो रहा है उसको। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आप लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम, और सभी ने ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने भी ईमेल आईडीज, कॉर्पोरेट मेल आईडीज तो सबके पास हैं, लेकिन कंसर्न ये नहीं है कि कॉर्पोरेट मेल आईडी है, कंसर्न ये है कि आपका जो कॉर्पोरेट मेल आईडी है उसका बैकबोन क्या है, उसमें एमएक्स रिकॉर्ड क्या है, सर्वर्स कौन से हैं, वो चेक करने के लिए आप अपनी कंपनी का कॉर्पोरेट आईडी डालिए और देखिए उसमें मेल सर्वर्स कौन से हैं, वो आपको मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? हम लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, हम लोग इसे आउटसोर्स करें, चलो एक लेवल पे समझ में आता है, हमारा इतना इंपॉर्टेंट डेटा है या नहीं, ये हमारे ऊपर है ना। लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट साइट्स आर मोर क्रिटिकल एंड देयर डेटा इज मोर वैल्यूएबल। If any employee is sending such data to any other server, that could be a big problem, that could be a big mess. So we have to transfer। ये अभी एक नई पॉलिसी, एक नया एक्ट आया है, DPDP एक्ट 2023, और नए रेगुलेशंस आए हैं, उसमें उनका बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है जी,
इंडिया का डेटा इंडिया में होना चाहिए. That is a part of our regulations now under Data Protection Act. So that is Digital Personal Data Protection Act आ गया है 2023 में, इंट्रोड्यूस हुआ है इसके लिए स्पेशली. तो आपका डेटा आपके पास ही नहीं है, आपका डेटा तो कहीं और स्टोर हो रहा है, तो प्रोटेक्शन क्या करोगे? तो वी हैव टू डिसाइड एंड वी हैव टू make a compliance with legal system, technical system, security systems, and various other compliance which are missing. Standardizations, we have to go with the standardizations also, right? So these are the best practices where we have to figure out, and accordingly we need to perform. Is that clear to all? Any doubt, any query? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है जी. इन्वेस्टिगेशंस के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है, और ये जो रिपोर्ट बनेगी ना, इसको कॉपी करके एमएस वर्ड में पेस्ट करके आपको वहां पे दिखाना होगा प्रैक्टिकली कि देखो आपने एक डोमेन के लिए क्या क्या ढूंढा. अब आते हैं इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. आपने सुना होगा अभी पीछे, और ये जनरल बड़ा फ्रीक्वेंट आ रहा है, स्कूल्स में बॉम्ब है जी, है ना, हॉस्पिटल्स में बॉम्ब है. देयर आर मेनी थ्रेटनिंग ईमेल्स आर कमिंग अक्रॉस. How can we investigate these mail servers, these mails? So आपको याद होगा दिल्ली में कुछ महीनों पहले, just a couple of months before, there was a one mail shooted that there are bombs, and that message goes to the media, and media start reacting like on a very high ground, and all the cops get active, school vacated, students being shifted to their parents, है ना. पेरेंट्स को जबरदस्ती वो बेचारे ऑफिस से भाग भाग के बच्चों को लेने गए, एंड ऑल दैट स्टफ बीइंग हैपेंड, है ना. तो उसके बाद बहुत सारी थ्रेटनिंग मेल आई है, लेकिन आपको ये इतना सीरियस नहीं आ रहा है. ठीक है यार, फालतू मेल है, किसी हैकर ने डाल दी होगी एंड ऑल सब, या किसी बच्चे ने डाल दी होगी. दिस इज लाइक द वे इट इज वर्किंग. ठीक है. सो नाउ नोबडी इज बॉदरिंग अबाउट सच थ्रेटनिंग मेल्स, बट the concern is if there is a mail, if it's a threatening mail, that could be a life threatening, and that could be considered as a part of cyber terrorism. And if it is a part of a cyber terrorism, do you know the penalty according to IT Act Amendment 2008, Section 66F, right? Especially it is mentioned 66F, which is related to the heinous crime, and the imprisonment is for lifetime imprisonment, has already been imposed for cyber terrorism. That is one of the section which is there mentioned in our IT Act. तो आपको लीगल भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, लीगल सिस्टम्स आपको पता होना चाहिए. सबसे ज्यादा हीनियस सेक्शन कौन सा? साइबर टेररिज्म. और उसकी सजा क्या है, उम्र क्या है? लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट. सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट इवन इन IT the heinous crimes are there mentioned over there, and there is a proper provision for that such cases. And if it is related to Indian security, sovereignty, and the community related, where somebody is trying to do a DDoS or threaten to the life, to be considered as a cyber terrorism. तो जब थ्रेटनिंग आया, ईमेल आया जी और इन्वेस्टिगेट करो जी, तो दिल्ली पुलिस में एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जहाँ पे लकीली हम लोग एसोसिएटेड हैं. तो आई एम ऑन रिकॉर्ड ट्रेनर विद दिल्ली पुलिस साइबर सेल. तो दिल्ली के जितने भी साइबर वाले हैं ना, उनके मोबाइल में कहीं ना कहीं मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा. जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, आप कहीं पे भी जाएंगे, उनके पास उनके मोबाइल में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, बिकॉज आई एम ऑन रिकॉर्ड ट्रेनर विद दिल्ली पुलिस साइबर सेल, राइट. तो जहां पे भी इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, यहाँ इनके कुछ कंसल्टेंसीज चाहिए, इनको कोई डाउट आता है, तो दे विल कनेक्ट टू अस, राइट. तो वन ऑफ द केस, जो फर्स्ट केस आया था, हाउ यू इन्वेस्टिगेट. सो लकीली आई वाज देयर एज अ बैकबोन विद द IFSO. देयर इज अ डिपार्टमेंट इन दिल्ली पुलिस कॉल्ड IFSO, IFSO, which is one of the dedicated department for forensics and for investigations. One front line for Delhi police actually. So that case goes to IFSO. द्वारका में हमारा इनका ऑफिस है हमारे पास. So we were there with them, and on the back end we start investigating, and what we found that the IP address belongs to some other country. And but how to investigate? Let me show you some basic stuff of that.
Let's say I'll go and open my Gmail. So let me see if I'm on Gmail also. So I'm going to open my Gmail right now. So you can find like I'm just trying to open a mail. Now I got some message. तो देखो जी ये मैसेज आया हुआ है अभी पीएम मोदी जी से मैसेज आ रहा है जी, है ना। और आप देख सकते हैं ये मैसेज है, मेरे नाम पे मैसेज आया हुआ है जी, डियर अनूप गिरधर जी नमस्ते एंड ऑल दैट स्टफ इज देयर। सो फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इनका हमारे पास एक मैसेज है। ये मैसेज मुझे कहाँ से आया? अब ये किसी ने फेक मैसेज भेजा है, इम्पर्सनेटेड है, आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे करोगे? तो भेजने वाला कौन है, कहाँ से आया, इसकी वेरिफिकेशन करनी है अगर, तो हमें एक्चुअली आई एम अ मीडिया पर्सन ऑल्सो, तो मुझे कई बार लगता है शायद कहीं मीडिया से तो नहीं मेरे पास कॉल या कहीं मैसेज, क्योंकि मेरा नंबर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में भी है। तो आई एम एक्चुअली एडिटर इन चीफ विद वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मेरे 2 न्यूज़पेपर चलते हैं मेरे नाम पे, आई एम अ फाउंडर ऑफ दोज न्यूज़पेपर्स ऑल्सो। साइबर टाइम्स का हमारा न्यूज़पेपर है, इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर, और एक जर्नल है हमारा। तो आई एम अ मीडिया पर्सन ऑल्सो, तो कई बार मुझे ऐसे फ्रॉम मीडिया से भी मेरे को मिलते हैं। बट मुझे लगा ये वाला ईमेल आईडी, मैंने मीडिया वाला मेरा मेल आईडी नहीं है, वो मेरा मेल आईडी ही अलग है, ठीक है। तो ये तो मेरा रेगुलर जीमेल आईडी है, एंड इन दिस केस why I receive the mail and from where I receive the mail, I want to investigate. So what is the best practice to investigate any mail? Just take a look. आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पर जब भी आप कोई मेल खोलेंगे, there you will find the mail. So don't go to the content of the mail. हम इन्वेस्टिगेटर्स को कहाँ जाना होता है? जीमेल आपके पास भी है, आप भी साथ साथ ट्राई करना चाहो कर सकते हो। यू विल फाइंड दीज 3 डॉट्स, आपको ये 3 डॉट्स मिलेंगे। आप इस इन 3 डॉट्स पे जाइए और यहां पे जाके देखिए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो ओरिजिनल, दिख रहा है? कैन यू सी दिस? एक ऑप्शन है बॉटम में लगभग, शो ओरिजिनल। जब आप शो ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली आपको मेल और उसके बारे में डिटेल्स, वो ईमेल आपको ऐसी दिखेगी। Then your mail is in some other format. This is exactly what we want. जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे या आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन कॉल आएगी, तो आपको ये डेटा लेना होता है, ना कि मेल, ना कि इसका प्रिंट स्क्रीन। इसके प्रिंट स्क्रीन से हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम जनरली कैसे चेक करते हैं? यहां से देखते हैं। यहां से मैं अगर देखूं तो वैसे दिख क्या रहा है? फ्रॉम, नाम जरूर इन्होंने पीएम मोदी लिखा है, लेकिन मेल कहां से आई है मेरे पास? कस्टमर अवेयरनेस @irctc.co.in। तो कहां से मेल आई है? IRCTC, यानी ये तो रेलवेज हैं, इंडियन रेलवेज, और इंडियन रेलवेज के मेल सर्वर का यूज करके मेरे पास मेल आई है। तो इससे तो मुझे ये क्लियरेंस आ रही है ना, इससे मुझे ये पता चल रहा है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, our one of the government department, that is irctc.co.in, drops a mail to all the register IDs which are there with them. तो इससे मुझे ये कंसेप्ट समझ में आया है, इसका कंटेंट कहां से आया और इनको क्या चैनल इन्होंने पकड़ा है। तो इससे चैनल तो मुझे, सोशल इंजीनियरिंग तो समझ में आ गई, फुटप्रिंट्स मैंने निकाल लिए। अब मुझे एविडेंस कलेक्शन करना है। एविडेंस कलेक्शन करने के लिए आई हैव टू गो एंड गेट इनटू दैट मेल। तो यहां पर आपको ये 3 चीजें पढ़नी है और याद रखनी है हमेशा। देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ईमेल्स। फर्स्ट इज SPF, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। यानी ये क्या होता है? ये मैंडेटरी है आज की डेट में, जितने भी मेल सर्वर्स हैं, जो मैंने आपको बताया ना MX रिकॉर्ड में, ये जो आपने MX रिकॉर्ड में IP एड्रेसेस देखे, ये IP एड्रेसेस आर डेडिकेटेड सर्वर टू सेंड अ मेल ऑन द बिहाफ ऑफ igno.ac.in। अंडरस्टूड? तो igno.ac.in के बिहाफ पे जो मेल सर्वर्स हैं, MX रिकॉर्ड्स हैं, वो सर्वर ये हैं और ये डेडिकेटेड सर्वर्स हैं। केवल यही लोग ही मेल भेज सकते हैं। अगर मेरे को इस डोमेन के नाम पे किसी और IP एड्रेस से मेल आता है और वो IP इसमें लिस्टेड नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ स्पूफ्ड मेल। इट इज अ स्पूफ्ड मेल। फेक मेल्स मिलती हैं, स्पैम मेल्स मिलती हैं। तो ये एक पहला पैरामीटर, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर टेस्टिंग
whether the mail has been received from the authenticated server or not, और इसका रिजल्ट आएगा पास फेल इग्नोर। रिजल्ट पास आया है मतलब बड़ा क्लियर है। मेल आईडी कहां से आया, मैसेज आईडी क्या है, मैसेज आईडी का नंबर मिल रहा है, डेट टाइम मिल रहा है, भेजने वाला कौन है, उनका ईमेल आईडी है क्या, कस्टमर अवेयरनेस एट irctc.co.in। यूजिंग, देखो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, नेट कोर क्लाउड मेलर, उनका सॉफ्टवेयर का नाम भी पता चल रहा है। अरे यार IRCTC बैकएंड में कौन सा मेलर यूज कर रहा है, नेट कोर क्लाउड मेलर का किसी का, ठीक है। तो जो ये डोमेन है, डोमेन के बिहाफ पे जब मेरे को मेल मिली, वो मेल मेरे को कहां से मिली, यहां से मिली, इस आईपी एड्रेस से मिली, ठीक है। मेरे को आईपी एड्रेस मिल गया, कहां से मेल आई है, और वो SPF रिकॉर्ड पास हुआ है, मतलब वेरिफिकेशन तो जीमेल ने ही कर दी। जीमेल ने वेरीफाई कर दिया कि ये जो सर्वर है, ये आईपी एड्रेस है, ये ऑथेंटिकेटेड आईपी है फॉर irctc.co.in। तो मुझे उसका आईपी एड्रेस मिल गया। आप फिर से वही काम कर सकते हो, आईपी कॉपी करो, चेक कर लेते हैं, who is स्पेस आईपी एड्रेस निकालो, और आईपी एड्रेस देखिए किसका है, बड़ा क्लियर हो गया जी, नाम आ गया, IRCTC का ही है, इन्हीं के पास ये सर्वर है, इन्होंने ही मेल भेजी है। क्लियर हो गया कि नहीं, ऑफिशियली, यानी हमारा क्रॉस चेक हो गया कि सच में यही ऐसा है, ये सही जगह से मेल आई है। तो हुई से हमने इसका रिकॉर्ड निकाल लिया फटाफट, तो हमें पता चल गया कि ये जो सर्वर आया है जेन्युइन सर्वर है, और वो IRCTC का ही मेल सर्वर है, MX रिकॉर्ड के अंदर एंट्री होगी इसकी, इसलिए ऑथेंटिक चैनल से आया है। डोमेन की वेरिफिकेशन करने के लिए DKIM होता है। तो जो डोमेन है irctc.co.in, अरे भैया वैलिड डोमेन है भी या नहीं, तो ऑब्वियसली डोमेन वैलिड है, उसको भी पास किया गया, ठीक है। और DMARC, ये कीज होती हैं, प्राइवेट पब्लिक कीज होती हैं सर्वर को मैच करने के लिए, वो भी पास हो गई, मतलब HTTPS मेलर सर्विसेज मैप्ड हैं, प्रॉपर सर्विसेज चल रही हैं, सर्वर से ही मेल कंपोज होके आई है, एंड इट इज ऑथेंटिक मेल। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया डेटा कहां से प्रोसेस हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, एंड एवरीथिंग इज देयर विद अस, ठीक है। तो डिलीवर ये पता चल गया। तो जब हमने वो थ्रेटनिंग मेल को क्रॉस चेक किया था, तो हमें उसका SPF मिला, और जो SPF जिस भी सर्वर से आया था वो वेरीफाई हो रहा था, लेकिन वो आईपी एड्रेस इंडिया का नहीं था, किसी और कंट्री का था, किसी और मेल सर्वर्स के थ्रू चैनलाइज होके आया था। तो इसको ढूंढते कैसे हैं, जैसे देखो यहां से मेल शुरू हुई थी ना, जहां से मेल शुरू होती है, अभी इसका ऑपोजिट कंसेप्ट दिखाता हूं। रॉ में से भी डेटा, आप तो हमें ये वाला डेटा भेजोगे, ऊपर वाला डेटा नहीं भेजते आप हमें हमेशा ये वाला डेटा भेजते हो। तो इन्वेस्टिगेशन में हमें ये डेटा चाहिए, और हम कैसे निकाल लेंगे, हम निकालते हैं, हालांकि बड़े सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, लेकिन मैनुअली निकाला जा सकता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया कंटेंट, कंटेंट से ऊपर, नीचे से बॉटम टू अबव, बॉटम टू टॉप जाइए, और एक कीवर्ड ढूंढिए रिसीव्ड। आपको कहीं रिसीव्ड कीवर्ड मिल रहा है, रिसीव्ड 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 कीवर्ड हमें ढूंढना होता है, ठीक है। जैसे ही आपको कोई रिसीव्ड कीवर्ड दिखे, तो रिसीव्ड वर्ड कहाँ है, नीचे बॉटम टू टॉप जाना है, बॉटम टू टॉप। ये देखिए रिसीव्ड कीवर्ड मिला ना, रिसीव्ड कीवर्ड के आगे क्लाइंट का आईपी मिला। तो याद रखना, आपके ईमेल के हेडर में ना आपका आईपी एड्रेस जाता है, जहां से भी आप मेल्स प्रोसेस करते हो। तो मुझे क्लाइंट का आईपी मिल गया, और ये वही आईपी है ना जो SPF रिकॉर्ड में मैच हुआ था, तो इसी में ही पता चल गया ये क्लाइंट आईपी ये है, और ये ऑथेंटिकेटेड है। तो हम यहां से इस तरीके से डेटा ढूंढते हैं, अंडरस्टूड। इसमें DKIM भी पास हुआ है, डोमेन पास हुआ है, हेडर की डिटेल मिली, इनके हेडर में क्या लिखा हुआ है, क्या पैरामीटर्स भरे हुए हैं इन्होंने, है ना, मेल कैसे प्रोसेस हुआ, ये सारी एक एक चीज को एनालाइज करने से हमें पता चल जाता है कि आपका 100% कॉन्सेप्ट ठीक है, वैलिडेटेड है, एल्गोरिथम मैच हो रही है, प्रोसेस सही हो रहा है। जब ये आपको क्लियर हो गया, आपका डेटा ठीक से काम करने लग जाएगा, और आप ऑथेंटिसिटीज चेक कर सकोगे। इसलिए ये एक छोटा सा समरी रिपोर्ट ऑनलाइन मिल जाता है कि मेल इज ओरिजिनल और फेक। तो ऐसे स्पैम और प्रमोशनल मेल्स को जा के एक्सप्लोर करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास जो मेल्स आ रही है वो जेन्युइन है या फेक है, या कौन से थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से आपको वो मेल भेजता है। आप खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। लॉजिक समझ में आया, ईमेल इन्वेस्टिगेशंस कैसे होती हैं।
तो इस तरह से बहुत सारे केसेस आते हैं और हम उन केसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं और उसमें से हम उनको पकड़ सकते हैं इजीली। लॉजिक क्लियर हुआ? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी को? यस प्लीज, समझ में आया? वंडरफुल, वेरी गुड, गुड। अच्छा, रुपेश ने भी आंसर दिए हुए थे, वेरी गुड रुपेश। एक्चुअली मैं अभी आया हूँ, मैं दूसरे स्क्रीन पे था, तो अब आपका मैसेज चेक किया, वेरी गुड, गुड। एटलीस्ट आप सबको अगर ये कंसेप्ट क्लियर हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा पढ़ना और इन्वेस्टिगेशंस करना। ओके, ग्रेट। ठीक है जी, दैट्स गुड टू गो। तो एटलीस्ट आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए, कोई टारगेट लीजिए, कोई डोमेन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन की डिटेल्स निकालें। ठीक है, कैसे आप डोमेन्स की डिटेल्स निकाल सकते हैं और कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं उसमें से। क्रैकिंग मेथडोलॉजी एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, हाँ इससे रिलेटेड भी कई बार मेल्स आती हैं। इसके लिए आपको ना कुछ चीज़ें चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, हाउ टू क्रैक एनी एप्लीकेशन। तो क्रैकिंग मेथडोलॉजी क्या है जी आपका, कि आपको चाहिए कुछ सॉफ्टवेयर जैसे मतलब आप समझो ना, डिप्लॉयड एप्लीकेशन है, आपके पास EXE फाइल है, क्या आप EXE फाइल के अंदर चेंजेस कर सकते हो? सोर्स कोड होगा, सोर्स कोड से आप प्रोग्रामिंग करते हो, जैसे क्या करते हो, सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड से आपने उसको कंपाइल किया या इंटरप्रेट किया, उससे आपने एग्जीक्यूशनल प्रोग्राम बनाए, एग्जीक्यूशनल कोड आ गया आपके पास, और एग्जीक्यूशनल कोड आने के बाद आप क्या करते हो, उस एग्जीक्यूशनल कोड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, आगे क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय कर देते हो, तो दैट बिकम्स अ डिप्लॉयबल कोड। जब आपके पास डिप्लॉयबल कोड है और अब उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई मिस्टेक है लेट्स से, तो हमें रिकम्पाइल करना और पूरा पूरा प्रोजेक्ट, सारी डिपेंडेंसीज को लेना, इट इज अ वेरी टीडियस टास्क, इतना आसान नहीं होता। यस इट इज इन द, यस अनिकेत, आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्स इंजीनियरिंग। So there is a concept called reverse engineering, and for that we use hex editors, we use uh, uh, interpreters, we do sometimes hex editors, we use decompiler। तो हम डीकम्पाइलर्स कुछ यूज करते हैं, कुछ हेक्स एडिटर्स यूज करते हैं। उससे क्या है कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, अपने के एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस में अगर कुछ छोटे मोटे, यस गाइड्रा इज वन ऑफ द IDE for reverse engineering, and that is basically a hex editors also, it's a kind of a hex editor। so we can identify these tools and try, and let's say हम आपको एक फाइल दे देंगे, कोई exe फाइल दे दी, और उसमें से आप उसका कहीं कोई टेक्स्ट, कोई कॉमन इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको चेंज करके दिखाओ। तो जैसे वो होता है ना कि ये गेम्स आती हैं, आपको कोई एक गेम ले लो और गेम लेके, और उसके अंदर क्या है वो दिखाता है कि यहाँ पेमेंट करो, ये वहाँ टेक्स्ट डाटा होता है। कैन यू मेक चेंजेस इन द EXE फाइल without having the source code? So for that we can go with the reverse engineering। सेम वे आप लोगों के जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, इन सबके क्रैक्स मिलते हैं ना, तो वो क्रैक्स कैसे बनते हैं, सीरियल नंबर्स कैसे निकल जाते हैं, तो या तो लोगों ने ब्रूट फोर्स अटैक किया होगा, तब उनके उनके पास कलेक्शंस आएंगी, अदरवाइज एक्चुअली ऑफलाइन या इंटरनेट की तो जरूरत नहीं होती। हालांकि अब आजकल पासवर्ड्स उसमें नहीं लेते, उसमें रखते हैं अलग से। हाँ, that makes a hard basically you are right, DRM makes it a hard today, you are very right। ठीक है ना, और ये डिनोवो आप यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी गुड टूल आल्सो, यू कैन ट्राई दिस वन। बहुत बढ़िया अनिकेत, शाबाश, आप इस पे काम करते हो तो आपको पता है, तो है ना, इससे रिलेटेड आपके पास कोई एक एप्लीकेशन दी जा सकती है प्रैक्टिकल में, और उसके आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके दिखाओ, उसमें ये बताओ, या हम आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस दे देते हैं, जैसे कोई एक फाइल दे दी आपको, और फाइल का बताओ, और उसका फाइल का एक्सटेंशन उड़ा दिया, अब बताओ कि वो फाइल कौन सी है,
वो इमेज फाइल है, वो टेक्स्ट फाइल है, वो डॉक फाइल है, एग्जीक्यूशनल फाइल है, पीडीएफ है, कौन सी है। सो रिवर्स इंजीनियरिंग से ये बेसिक चीज़ें निकल आती हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और नहीं या तो कुछ चेंजेस कर सकते हो उन फाइल्स में विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिस्टर्बिंग एनी कंपाइल्ड कोड। सो गाइड्रा पे आप हैंड्स ऑन कीजिए और ऐसे बहुत सारे यूटिलिटीज हैं जिस पे आप कर सकते हो। और आजकल तो और बड़े नए कॉन्सेप्ट्स भी आ गए हैं, जैसे पासवर्ड ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स आ गई हैं। तो अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह के देखा हो तो उसमें क्या रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स बन गई है। कमांड लाइन पे सीएमडी पे आप यहाँ उस पे पावर शेल पे उसको रन करते हो, आईआरएम कमांड्स वगैरह यूज करके किसी वेबसाइट से, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लेता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सिग्नेचर्स ले जाता है, उसके अकॉर्डिंग एक नया सीरियल नंबर आपकी मशीन में डिप्लॉय करता है, रन करता है और एक्टिवेट कर देता है। सो हालांकि दिस इज बैड प्रैक्टिस, आई डोंट रिकमेंड दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, बट sometimes it is required for even for the development team to go with the reverse engineering, because for some common or some typo errors you cannot go for recompiling the entire project. So we can do some reverse engineering, make some changes and update that file and it is ready to go. So you can try some codes. In fact हम malware analysis करते हैं reverse engineering से, हम लोग कोड में चेंजेस करते हैं। जैसे आपका एड्रेस, कंपनी का एड्रेस आपने लिखा था गेम के अंदर के, पेमेंट करनी है, एड्रेस कांटेक्ट करना है, या ईमेल आईडी है या फोन नंबर है, आज आपका फोन नंबर बदल गया तो क्या ईमेल का पूरा कोड, एप्लीकेशन का पूरा कोड बदलोगे क्या? क्योंकि आपने उसमें कांटेक्ट में वो कंटेंट डिटेल्स डाली हुई थी। तो नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप वो जो बेसिक टेक्स्ट वगैरह होते हैं वो सब आप रिप्लेस कर सकते हो। सो दैट इज वन ऑफ द प्रैक्टिस, यू कैन ट्राई रिवर्स इंजीनियरिंग। गाइड्रा इज अ वेरी वेरी गुड टूल, है ना। तो एटलीस्ट यू कैन गो विद एनएसए और इनकी एजेंसीज है ना, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह जो होती हैं, और ये सब का इनका खुद का टूल था, ये यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज का गाइड्रा, ठीक है, एनआईए जैसे और ये सब है ना, इनके अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं यूएस की, ये एक्चुअली टूल उनका था गाइड्रा। अब एक एम्प्लॉय कहते हैं कि ये लिखा हुआ है कहीं, आप पढ़ लेना, somebody who left that part and then finally left that agency and finally they disclosed this is the tool which they use for reverse engineering and all. But hardly matters, there are many third party tools available. Deassemblers are there, hex editors are there are many third party tools apart from Gaidra. Gaidra is very good tool because it have a concept of वो ना उसमें interpreter भी है, it supports some interpreter part, reverse engineering and recompiling part और coupling decoupling वाला process है इनके अंदर, इसमें इन applications में, or you can couple the data or decouple the data and then recouple the data. So that is how you can make a modular part. You can find the interrupts, IRQs, registers, changes in their codes and jump statements. You can make changes in those jump statements by using reverse engineering. So there are a lot of things, lot of practices are there. At least you can try to identify these things over there. Right? आपको गाइड्रा के ना यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे, गाइड्रा जरूर ट्राई करना एक बारी, और कहीं पे कोई एप्लीकेशन लेके या कोई फाइल वगैरह को लेके हम उसके अंदर चेंजेस करके देख सकते हैं। ओके मतलब पुराने वाले विंडोज में तो ये होता था जहां स्टार्ट लिखा है, आप स्टार्ट हटा के अपना नाम लिख सकते थे, और ऐसा ना वो क्या explorer.exe फाइल है, उसको आप गाइड्रा पे ले जाओ पुराने ओएस में, विंडोज 7 वगैरह में अगर आप ट्राई करना चाहते हो, या कौन सा था, विंडोज एक्सपी था शायद पहले, तो अगर आपके पास है तो वीएम में डाल लीजिए, वर्चुअल मशीन में, उसमें explorer.exe ले लीजिए, उसमें बड़े सारे कॉमन आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जहां स्टार्ट लिखा है स्टार्ट हटा के आप अपना रीनेम कर दीजिए एंड देन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर एंड यू विल सी वो स्टार्ट वर्ड हट के जो आइकन होता है स्टार्ट हट के आपका नाम आ जाएगा वहां पे। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने उसके बाद से कभी भी जो है स्टेटमेंट मतलब टेक्स्ट नहीं रखा, इमेज डाल दी उसकी जगह। So that is the practice how Microsoft is working over there. Acha, just give me a minute. Somebody is there. Let me just check who's there. Basically, somebody is waiting for me. Just give me a minute. I'll be back.
soon. Yeah, okay. So I hope the concept is quite clear to all. तो एक बार आप लोग थोड़ा इस पे प्रैक्टिकल्स कीजिए. I just gave you idea like how you have to implement all these practicals. तो थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया इसलिए. So just try it and accordingly we will proceed. आप लोग अपना अपना अटेंडेंस, अपना नेम, रोल नंबर और आपका आरसी अगर डिफरेंट है तो प्लीज वो और मेंशन कर दीजिए चैट पे, जस्ट टू मेंटेन योर अटेंडेंस. Yes, everybody just type your name, roll number, and from which RC you belongs to. Just mention it on a chat so that I can take your attendance. Right.
Yes, please mention, Birendra, your enrollment number and your RC also. देखो ना, जैसे तबीश ने डाला है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे एक ही टेक्स्ट में डाल दीजिए, so that would be easy for to gather your information. Name, roll number and then RC. तो प्रैक्टिकल शुरू कीजिए सारे, कुछ डाउट हो तो पूछेगा। आज शाम की भी हमारी क्लास है ना, आई थिंक 5 o'clock से 5 to 8 भी क्लास है। मैं उसमें और भी टॉपिक्स ले लूँगा, ठीक है, और आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करा दूंगा उसमें। और आपके जो भी, हाँ, टुडे ऑल्सो वी हैव अनदर सेशन बाय 5 to 8, तो आई विल बी देयर एंड आई विल हेल्प यू इन दैट सेशन एज वेल। ठीक है, मीनवाइल आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए। आई थिंक आई कैन सपोर्ट इन दैट वे, राइट? गुड। नो प्रॉब्लम अनिकेत, एक्चुअली दिस इज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, तो सेशंस में हैं, और आप सबका वो ना नेम और वो सब उसमें आ जाता है, सो डोंट वरी एट ऑल, राइट? हाँ, so you need not to worry, but that session is not with me, these recordings are not with me, so I just need to sometimes report na, so for that is the purpose I'm asking these stuff, okay? सो ठीक है जी, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी कुछ डाउट आता है, कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी, विल डिस्कस देन अकॉर्डिंगली। And I think then we'll see you in the next session by 5 p.m. today, right? ठीक है जी, all the best. Great. Bye, sir. Thank you. Take care. See you then in the evening. Thank you, Tabish. Thank you. You too. Take care. Take care.